Sure. So, agenda for today's lecture is, first of all, welcome everyone. I hope everyone is good. Hello, good evening. Yeah, good evening, Joy. So, agenda for today's lecture would be, we will going to discuss about substring a bit, and then we will pick about the stack, and then we will see the assignments if the time permits. So, before we start, do you have any question? Anybody is having any question? Are you enjoying data structures or finding it boring, useless? No, it's important, I guess. No, it's important. That's fine. But are you enjoying it? That's the purpose. Yeah. Yeah, I see. I mean, if you're not enjoying it, then Well, the assignments in the string were a bit repetitive. verb bit A bit like it was not like in a like somewhat similar. similar to what? Similar Similar to to each other. yeah. So these type of questions are asked in the interviews also. That's why they are put like that. And there is one question. When it we were discussing about this thing, right? Yeah. Finding a loop in a Linked list. yes. So So yeah. in that, I have one question, like how to find at which node the actual loop starts. Okay. So I did not find the solution for that. You wrote the code for that. I mean, like the code was like similar, right? I mean, like we should, if we are able to like change the node and we are putting a boolean or something that if it is visited or not, then we are able to find out. Other than that, if we have just a shorten like slow and fast pointer, how are we Okay. going to find the beginning of them? What do you think? Uh, I don't know. So you are saying that you are not able to tell where the loop is. Yeah, where the loop starts. So In what do you which node think? the loop starts. Okay. So did you understand the fast and slow pointer concept? Yes. So tell me, where should I start from my fast and slow They pointers? both Where should I? started they both started head. Okay. One goes with like two nodes, one jumps two nodes at a time, and that will be the S is fast. here, F is here. Okay. This is how Yeah. you are saying, or Yes. something else. S is here, F is here, right? Or no? Yes. S is here and F is where? Yes. F is here or where? No, at the S only. Like you'll find the node at that one, at that point. So you are saying that we are not able to tell where the loop starts. But Yes. okay, so if the question is asking you where the loop is, then what do you think? Which So what happened is like Mayank shared the video for that, okay? but he gave that as an assignment, but I couldn't find out any other solution other than just like getting the getting some value, changing the node like the actual node. But what about storing it in array? Yeah, I mean that is a solution, but Mhm. is there any other way to do that? What's the issue with this approach? So if there are like 2000 elements, we'll have to create an array of 2000 elements. So Just otherwise, how will you going to tell where it is? yeah, that's what I was thinking. So either this or that. Is that the only solution to this one? See, the point is you can store it in the set, and the time complexity of finding it in set would be O1. But space complexity will become O of n. Yeah. First approach is that. Second approach is have a visited flag, but again the time complexity would be O(n), right or not? Yes. So in both the cases, the time complexity is going to O(n). So if you ask me, I will choose this approach.
Yeah, because time at least time complexity is like O of n. Yeah. Yeah. But usually the question which is asked is you need to tell whether there is any loop or not. If it is just finding whether there is a loop or not, we are able to do that. It's fine. Yeah, so slow and fast pointer will work in that case. Yes, yes. And I also thought I also found out ki like if we are using slow and fast pointer, it's never going more than n. It's always going like So someone told me that the complexity will be greater than ON. yeah. I thought ki like perhaps in Okay, a you full told loop me. it might actually do that, but even in full loop it's like it's going to order of n. It's not going more than order of n. Manas and Pooja, for you, is it possible to get the time complexity more than ON? Did you try it? Yeah, I tried, but we basically implemented Mayank sir's approach only. What's his approach? So his approach was slow pointer and fast pointer will keep moving. Okay. At a certain time, both of them will coincide. Okay. So the time complexity in this approach will be? It will be O of n plus some constant, but in long term, I don't think it will affect. So it should be O of n. ON plus constant. So I think you didn't try it at home. When you are saying ON plus constant. In which case, what is this constant? Constant, I guess it depends on the length of the loop. I'm not getting your point. Can you give few example? Say our loop is like, how do I say this? Like there's 10, 15 objects in between inside the loop. Okay, let's make 15 objects. So how many are there? 4, 7, 4, 4, 8. 8, 8, 16 are there. So Yeah. let's say this is getting connected to this. Is it Okay. fine? Now you are saying it will be greater than ON. Yes? That's what you are saying, or my understanding is something different? Yeah, basically it's O of n plus something, but like we don't take constants into account. No, I'm taking it. I want to go into minute details. So you Okay. are saying that this constant, I want to know how this constant is coming. So what I thought was, say one pointer is moving, our fast pointer is moving like 3 at a time or a 4 at a time. Fast pointer is moving? Is fast pointer normally you move it twice or twice, right? And slow, Twice or thrice? like that was what I was thinking. Like if we move it only twice, then it will be less than O of n. But say we are moving it more than twice. Why you will move it more than thrice? More than twice or thrice? You saw any solution like that? I think I'm mixing the two, I guess. I have to see, but we implemented uh, only twice. Over there, it was proper. Like it should be less than O of n only. How it will be always less than OFN? I mean, in worst case, it will be O of n. Like if we get it at the end and it coincides at the end, then it will be O of n. But you said it will be ON plus constant. I wanted to know what is this constant. Yeah, that was when I was thinking like if we move more than twice. But that solution is not even the solution. You need to move only one twice. That is f next is equal to next. Yeah, This is how we will move, right? Or not? yeah, Mayank told this thing only, right? yeah. So as Joy said that the time complexity is never coming more than O of n. So I wanted to see whether Manas and Pooja also tried it. See what happens. Why I ask this question is because people know the answer for this question, but Yeah. when you ask them the time complexity, they give answers like you are giving. Okay. It will be greater than ON in some cases. It will No, be lesser than ON in some cases. I'll, How?
my logic was, oh, okay. So we had implemented another solution in which Mayank sir had asked us to find like 1/3 or 1/4 element One. of the link list. Oh, that's a different thing. Yeah. I mixed the two. No, that's a different. Sorry. No, not an issue. Just I want to know whether you know this or not. See, I'm giving you the answer, though I expected you to tell me. The time complexity will never be greater than ON. That's Yeah. what ON. Joy told. Did you try it, Pooja? Yeah, time complexity. I did that loop wala thing. So time Okay. complexity was OFN. Always? Yeah. Will it be less than ON also in some cases or not? Less than OS. No. Yes, it might be less than OFN, but it won't cross OFN. Pooja, Maybe. you also didn't try it. I gave you 2 days for this. Otherwise, we were having class on Friday. Maybe I'm wrong. See, I didn't no, you are not wrong. You are not wrong. No, it won't be less than. Sorry. Worst case it will be OFN only, but Not more it than that. can be less. I than. wanted you to try it in your notebook for 2-3 pages at least. Make some loops. Make loop here, there, right, and try. That's how we learn, right? That's the only shortcut of learning data structures. Okay. Anyways, let's see. Any other question? And how to find 1/10 element, like 10th element, if I want to find. Just Same like just run the counter ना midpoint then. वाला. Midpoint वाला वैसे ना? नहीं काउंटर रन करिए ना तब तो आप. Okay. अब ऐसे तो है ना, कुछ भी निकालना है आपको तो वैसे हाँ. है ना, काउंटर 0 है. समझ रहे हो ना हाँ. मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं? हाँ. तो बस रिटर्न Okay. कर दो. इसमें इशू क्या है कि 1/2 का बेटर सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए हम काउंटर मूव नहीं कर रहे. 10th एलिमेंट निकालना है. 10th में तो O10 की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ही आएगी. आपको 10 मूव करिए, है ना. तो देखिए, हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप अपना माइंड ना फ्रेश रखो हमेशा कि यही सॉल्यूशन के अंदर मत चले जाना. काफी बार क्या होता है, हम एक चीज पढ़ के जाते हैं फिर वही बोलते रहते हैं. वी ट्राई टू फिट एवरीथिंग इन. जैसे मैंने बोली. हाँ, और ये जनरली क्या होता है, जनरली आप जो 15 मिनट पहले पढ़ के जाते हो ना इंटरव्यू के, वही बोलते रहते हो और कुछ बोलते ही नहीं. तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए. थोड़ा सा ओपन माइंड रखना होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को. ये है. एनी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? और कैसा लगा डेटा स्ट्रक्चर्स? डेटा स्ट्रक्चर्स को पहले पेन एंड पेपर की तरह करना होता है नोटबुक में, उसके बाद कोड करना होता है, राइट? सीधे कोड स्टार्ट नहीं करते. हाँ. ये भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए. बट हमने सर सारे स्ट्रिंग के असाइनमेंट्स ही किए हैं 2 दिन में लास्ट. तो लिंक लिस्ट भी कर देते ना 1-2. लिंक लिस्ट के भी किए थे पहले ही. अच्छा, कर लिए. हाँ. तो करो, रिवर्स करो इसको, लिंक लिस्ट को लो. जो डिफिकल्ट वाले थे वो शुभम सर ने बोला आप चाहिए तो आगे बढ़ो, ये स्टार्ट कर दो. चलो, मैंने आसान सा पूछ लिया. ओके. रिवर्स कर दो इसे. ओके. आसान है ना? नहीं? हाँ. ये आंसर दे दो. What if we store it in a stack and फिर पॉप करके एक करके लिंक कर दो. तीन पॉइंटर्स यूज करना पड़ेगा. लाइक एक सेकंड पहले मानस, आप पहले बताइए. सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू. ओके. मानस ने पहले बोल दिया ना, तो इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है मेरा. मैंने सिंपल सा क्यू इंप्लीमेंट कर रखा है ब्रेन में. हाँ मानस बताइए. हाँ, तो I'll do another push for every iteration ऊपर. रुक जाइए एक सेकंड. स्टैक ले लेता हूँ मैं. हाँ. स्टैक आप इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि वो अभी पड़ा है, इसलिए क्या? नहीं. अच्छा ठीक है. 1 डाल देता हूँ मैं सबसे पहले. 1 डाल दिया. अब बताइए. 1 फिर नेक्स्ट वापस 2 डालूं? हाँ. 3 4 5 एंड तक. अच्छा, डाल दिया. अब Now new linked list में will keep popping off the stack
एंड वो लिंक लिस्ट में ऐड करते जाएंगे. कैसे ऐड करेंगे? जैसे इंसर्ट करते हैं पूरा वो लॉजिक को कॉल करेंगे? इंसर्शन ओनली इस पे एट द फ्रंट. 5 को इंसर्ट करा फिर? नहीं सॉरी, एट द एंड. अच्छा इंसर्शन एट द एंड. तो, तो क्या ठीक है 4 फिर 3 2 1. अच्छा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? इसकी फर्स्ट इटरेशन O ऑफ n जो क्या तुम वो क्या वो ऑफ एन जो टाइम स्टैक. बता रहे हो? क्या बता रहे हो? स्पेस बता रहे हो? नहीं, ये टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है हाँ. ओके बताइए. एंड स्टैक में पुश करने का विल बी O ऑफ 1. अच्छा ओ ऑफ एन प्लस इंटू ऑफ 1 कर दूं, ये कर दूं? हाँ आई गेस. ओके और बताइए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल आल्सो बी O ऑफ n. कैसे? ये स्टैक में विल एलोकेट सेपरेटली उतना मेमोरी ना, हर एक के लिए, हर एक नोड के लिए. ठीक है तो ओ ऑफ एन कैसे आया? क्या चला रहे हैं आप? कैसा लूप चल रहा है? कुछ बताइए. नहीं एक्चुअली हम लोग ये वाला ही यूज कर सकते हैं आई गेस. क्या? जो लिंक लिस्ट है ऊपर, उनके ही एड्रेसेस हम लोग स्टैक में स्टोर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अब एलोकेटिंग न्यू मेमोरी. बताइए स्टैक को एड्रेस स्टोर करने का कैसे? क्या लिखूं? डेटा टाइप क्या होगा? इनका नोड ही रहेगा, पॉइंटर नोड पे ही रहेगा एंड हम पॉइंटर को वो करते जाएंगे. क्या? नहीं, नोड नहीं बना सकते उसको. नेक्स्ट 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 में स्टोर करना पड़ेगा उल्टा. नहीं, अलग से मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा अपने. अच्छा तो क्या करूं अभी? तो हम स्टैक में विल कीप पुशिंग O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसका भी रहेगा. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस कर रहे थे, आप बताइए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी? स्टैक से पॉप करने का कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ 1. ओके फिर एंड फिर वापस लिंक लिस्ट में हम लोग एंड में ऐड करेंगे, उसका कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n. तो ये स्टैक कैसे चल रहा है आपका? ये ऐसे ही चला गया ना? वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, हाँ ऐसे ही चला रहे हो ना लूप में? और हाँ इसके अंदर आपने लिखा है ना एक इंसर्ट करने वाला, या हाँ. बट नहीं? स्टैक का पॉप ऑपरेशन हमको एकदम नीचे तक नहीं जाना है ना, उसमें सिर्फ ऊपर वाला पॉइंटर उठा के उसमें वैल्यू. तो हाँ तो ठीक है, आप कोड बताओ कैसे लिखोगे? ओके. पहला एलिमेंट आपने पॉप कर दिया, उसके बाद क्या करोगे? कुछ वाइल लूप तो लिखोगे ना, या फॉर लूप, हाँ हाँ हाँ. या उसके बिना ही हो जाएगा? नहीं. तो आप एक स्टैक का लूप लिखोगे वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, हम्म. और यहाँ पे आप पॉप करोगे, ठीक है? हाँ और फिर इसके अंदर एक इंसर्ट का लूप चलाओगे, हाँ. n स्क्वायर हो गया. और ठीक है ना, ओ एन स्क्वायर हो गया. हाँ तो हाँ आप तो ये सॉल्यूशन तो वैसे ही सही नहीं है. एक तो आप स्पेस ज्यादा ले रहे हो, और हाँ. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन स्क्वायर आ रही है ना, ओ एन स्क्वायर ये बराबर. है. तो अब बताइए जॉय, पूजा बताइए पहले आप, आपको कुछ आइडिया, आप कुछ, आपका क्या कहना है मैंने पॉइंटर लिया 3, उसके एक करंट पॉइंटर लिया. अच्छा ये 3 पॉइंटर कैसे रट लिया है क्या आंसर? नहीं नहीं, वो आप उससे पूछ रहे थे तो फिर मैंने. अच्छा इतनी देर में कर लिया. हाँ. हाँ बताइए करंट. तो फिर एक नेक्स्ट लेंगे और एक प्रीवियस लेंगे. कहाँ पे रखूँ नेक्स्ट, कहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस रखूँ? प्रीवियस अभी नल है एक्चुअली. अच्छा अच्छा ओके. करंट करंट है ना, हेड पे है ना हाँ करंट? करंट हेड है. हाँ. ओके. और प्रीवियस और नेक्स्ट आपके दोनों नल हैं. फिर उसके बाद फिर मैं करंट मूव करती हूँ जब तक कि वो नल ना हो जाए. ओके. while C is not null, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ मैं. हाँ हाँ, इट्स ओके. हाँ और बताइए आगे. फिर क्या? फिर बताइए. हाँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट में मैं करंट ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी करंट ऑफ नेक्स्ट. ठीक है. और नेक्स्ट यहाँ आ गया. हाँ. और फिर प्रीवियस की वैल्यू जो हो जाएगी
प्रीवियस की वैल्यू तो मैंने कुछ गलत बोला क्या? Next. क्या हो गया? करना क्या है वही आपको? प्रीवियस रिवर्स। तो क्या करना होगा रिवर्स के लिए? तो करंट ऑफ नेक्स्ट को प्रीवियस बनाना होगा। तो प्रीवियस है कहाँ आपका कुछ? अभी तो सब नल अभी है। तो नल है, हाँ। तो क्या करे, कुछ करा ही है उनके। तो वही करंट, मतलब ये करंट ऑफ नेक्स्ट को प्रीवियस बनाना होगा। हम्म। सही बोला मैंने? हाँ सही तो बोल रहे हो, लेकिन कैसे करूं मैं इसको? पी असाइन कर दूं ना, हाँ और करंट यहाँ पे होना चाहिए, हाँ, करंट नेक्स्ट वहां यहाँ पे। होना चाहिए। हम्म। अब बताइए कुछ, क्या करूं? इतना तो सही है। फिर प्रीवियस नोड में करंट असाइन करना पड़ेगा। प्रीवियस नोड में करंट, आप बताइए। हाँ, क्योंकि हमें फिर वैसे स्वैप करना है ना, रिवर्स करना है। तो क्या कह रही हैं आप? तो हम जो प्रीवियस है उसमें करंट का वैल्यू डालना पड़ेगा ना। वैल्यू? नहीं, करंट का नेक्स्ट पे प्रीवियस का वैल्यू डालना है। क्या करूं करंट के जॉय? नेक्स्ट में प्रीवियस का करंट, वैल्यू। हाँ करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस को पॉइंट करेंगे, हम्म। और फिर प्रीवियस को करंट पे डालेंगे, करंट को नेक्स्ट पे डालेंगे, नेक्स्ट को आगे बढ़ाएंगे। करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस करेंगे, ये कर दूं ऐसे? यस। और फिर? लेकिन वो नेक्स्ट भी नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट होना भी चाहिए ना। क्यों? नहीं। ओके, तो नेक्स्ट नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट भी बढ़ाएंगे, नेक्स्ट बढ़ाएंगे, नेक्स्ट इज इक्वल टू जो नेक्स्ट का नेक्स्ट है उधर वो नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और करंट जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट में, अभी जहाँ पे नेक्स्ट है वहां पे पहले पहले फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस को करंट में डालेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट। ओके ठीक है जॉय, एक सेकंड में। देखिए, इस चीज में करना क्या है हमें? तो ये करना है ना बस। हम्म तो अगर मेरा ये करंट है, ये हम्म प्रीवियस है, हम्म। अभी मैं इसको भूल जाता हूँ, इसको नहीं रख रहा मैं, मेरे को जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ओके। तो करंट का नेक्स्ट को मैं अगर पी कर दूं तो ये हो गया ना? समझ, ये क्लियर है आपको? हाँ। जॉय, मानस, आपको ये क्लियर है? शायद जॉय को तो पहले ही क्लियर है। ओके। नहीं ओके नहीं, पहले बताओ आपको क्लियर हुआ ये? नहीं ये वापस। लिख, नहीं हुआ? नहीं। ये करंट है, हाँ ये प्रीवियस है, ठीक है। हाँ। करंट का नेक्स्ट में पी डाल दिया मैंने, करंट के नेक्स्ट में पी। ओ हाँ 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 तो ये हो गया या नहीं हो गया ये? हाँ। क्लियर है या नहीं है? नहीं है तो रोकिए मुझे, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं है तो लिंक लिस्ट का कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं समझा। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ गई, ये तो मैंने कर लिया, अब मैं आगे कैसे बढ़ू, है ना? 3 पे कैसे जाऊं? उसको 3, टेम्परेरी नोड में स्टोर करके रखो। इसको मैं अगर नेक्स्ट में स्टोर कर लूं पहले ही तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। पूजा, मानस, जॉय। नहीं, एक बार फिर से। ये नेक्स्ट में थोड़ी कोई और अलग से नोड में सेव होगा ना। ट्रेन का इंजन देखा है? ट्रेन इंजन, हाँ। हम्म ये वाली B1 B2 बोगी ऐसे होती है ना? हम्म तो B1 B2 से कनेक्टेड है, B2 B2 B3 से कनेक्टेड है। अब ये हम्म B2 जो बोगी है, इसको हम्म मैंने B1 से कनेक्ट कर दिया, हाँ। हम्म तो अब ये तो हट गया ना? समझ में आया? हम्म। हाँ तो अगर मेरे को B3 से किसी को कनेक्ट करना है तो इसको पहले ही स्टोर कहीं करना पड़ेगा ना, कि B3 थी कहाँ पे। हाँ, तो मैं करेक्ट। वही नेक्स्ट को हमको कोई टेम्पररी नोड में हाँ store वो करना पूजा को मैं समझा रहा था। पूजा आप बताइए, अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, अभी अभी हो गया। ये सी का नेक्स्ट इज इक्वल टू पी करने से हुआ क्या, ये जो है ना असली में, हम्म ये अब ऐसे ऐसे हो चुका है, ठीक है। हम्म। अब आप मेरे से बोलोगी कि भाई 3 पे कैसे जाऊं मैं, हम्म तो इसलिए मैंने एन में स्टोर कर लिया इसको पहले ही। एन इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। समझ में हाँ आया नहीं आया? हाँ हाँ हाँ।
अगर मैंने ये कर लिया, इतना आपको समझ में आ गया तो आप सब कर लोगे। अब तो कुछ नहीं करना मुझे, अब तो मेरे को c इज इक्वल टू n करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? हम्म अगर मैंने c इज इक्वल टू n कर दिया तो मेरा c यहाँ पे आ गया, हम्म है ना? अब हम्म मैं p को कैसे मूव करूं? तो देखिए, इसलिए इससे पहले आपको p इज इक्वल टू c करना ठीक पड़ेगा। करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना हाँ ये जब आप थोड़ी सी गलती करते हो तभी समझ में आता है। नहीं कोई मानस क्लियर नहीं हुआ तो बताइए। पहले c यहाँ था मेरा, अब हाँ मैंने सर। देखिए p इज इक्वल टू c करा तो p तो यहाँ आ गया, c भी यही है। अब मैं c को यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, तो मेरा c भी यहाँ पॉइंट कर रहा है ना? हाँ और अभी। n इज इक्वल टू n का नेक्स्ट। हाँ फिर n का नेक्स्ट, ये सॉरी c का नेक्स्ट विल वापस बिकम प्रीवियस। अब तो c का नेक्स्ट वापस बिकम प्रीवियस, ये तो ये फिर से वो हो गया है ना? वाइल हाँ लूप चला दूं अब तो मैं, तो वाइल लूप चला दूंगा ना एक। हाँ। ये है बस ये। मेरे को एक और लॉजिक समझा। बताइए। वो अगर हम से फ्रंट से डिलीट करें सिर्फ नोड को। फ्रंट से डिलीट करें? बताइए हाँ कैसे। मतलब से हमने फ्रंट को आगे नेक्स्ट में मूव करके हमने फ्रंट का वैल्यू निकाल दिया। फ्रंट क्या है क्या? ये फ्रंट वाला वैल्यू ये 1। हाँ ओके। एंड हमने एक और ये इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस बढ़ेगा अपना। हम अब कोई एक बात और, नहीं। हाँ एक और लिंक लिस्ट में हमने वापस फ्रंट में ही एलिमेंट्स डालना शुरू किया। ठीक है, अब आप आगे आगे डालते जाओगे ये कह रहे हो क्या? हाँ नहीं, वो अप्रोचेज नहीं चलती। हमेशा आप सबको बोला जाता है कि सेम लिंक लिस्ट को चेंज करो। ऐसी अप्रोचेज अगर आपके दिमाग में आ रही है तो वो आंसर गलत ही ओके ओके गॉट इट। है ना? वरना तो लिंक लिस्ट और एरे में डिफरेंस सबसे बड़ा यही होता है कि लिंक लिस्ट में आप पॉइंटर्स को चेंज कर सकते हो। ओके। क्लियर हुई अप्रोच या नहीं हुई? हाँ हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओपन। 10 हाँ वो ऑफन। सही है सही है। Very important question asked a lot of times during the interviews. मेरे को एक नंबर दे रखा है 10111 जो लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंटेड है। इसमें मेरे को कैरी ऐड करना है, कैसे करूंगा? मैं तो पहले इसको रिवर्स कर दूंगा। अच्छा फिर? रिवर्स करने के बाद पहले से जैसे ऐड करेंगे और कैरी एक ऐड करते जाएंगे। सबसे पहला 1 हम फर्स्ट नोड में ऐड करेंगे और अगर दोनों तरफ 1 है तो एक बेसिकली एक इफ स्टेटमेंट तो लगाना पड़ेगा जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर 1 1 है तो कैरी 1 और आंसर इज 0, और अगर 1 0 है तो आंसर इज 1 एंड कैरी 0। ऐसे करके कैरी स्टैटिक बना के कैरी को स्टैटिक रखेंगे ताकि हम सारे नोड्स में स्टैटिक का वैल्यू एक ही रहे। स्टैटिक बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, आप करके देखना। स्टैटिक की ठीक है। जरूरत नहीं है, बेसिकली एक परमानेंट वैल्यू यूज करना पड़ेगा। हाँ और फाइनली लास्ट में अगर कैरी बच गया है और नोड का नेक्स्ट वाला इज नल तो विल ऐड अनदर नोड टू द लिंक लिस्ट एंड देन रिवर्स इट, विल गेट द वैल्यू। फाइन, ठीक है, गुड आंसर। सो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर आप अपना सर पीटते रहो कि मैं 1 को पीछे से कैसे ऐड करूं तो कभी नहीं होने वाला, है ना? हाँ +1 को इसका आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन ये भी तो हो सकता था, तो अब क्या करते? 0 0 0 1 1, ये भी तो हो सकता था। तो इसलिए अगर आप पीछे से ऐड करने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला ये क्वेश्चन। अच्छा ये है कि इसे आप रिवर्स कर दो, 1 1 1 0 1 ये बन गया। अब +1 ऐड करने की कोशिश करो, ये बन गया 2 1 1 0 1, फिर से रिवर्स कर दो, आ गया आंसर, है ना? इसको देख लेते हैं, इसको भी रिवर्स कर दो, 9 9 9 0 1, ऐड कर दो 1, 0 0 0 1 1, फिर से रिवर्स कर दो। एक और केस देख लेते हैं, 9 9 9 9, इसमें 1 ऐड कर दो,
इसको रिवर्स करोगे 9999 ही आएगा। अब करके देख लेते हैं। 0 0 0 0 1, एक इसमें एक्स्ट्रा नोड ऐड करनी पड़ेगी। अब फिर से हाँ। रिवर्स कर दो। बताइए क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? हाँ ऐसी दो लिंक लिस्ट है, उनका सम निकालना है, तब भी यही करोगे, है ना? हाँ पूजा, आई होप आपको भी क्लियर हो गया हो। हाँ हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी फिर? रिवर्स करना है फिर वापस। रिवर्स का ऑर्डर ऑफ एन, ऐड करने का ऑर्डर ऑफ एन, हाँ, फिर से order of n। रिवर्स करने का ऑर्डर ऑफ एन, सो ऑर्डर ऑफ एन। फाइनल वो ऑर्डर ऑफ एन आ रही है ना या नहीं? टाइम हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन क्यूब तो नहीं बोल दोगे ना? नहीं नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है ना, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हो। तो लिंक लिस्ट में ना इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद द नेक्स्ट पॉइंटर, all about playing with the next pointer. If you are able to do that, then you are champion of linked list. If you are not able to do this, play with the next pointer, तो फिर तो आप मतलब क्या करोगे फिर? आप एक्स्ट्रा स्पेस लेते रहोगे। आप बोलोगे लिंक लिस्ट ले लो एक्स्ट्रा, आप बोलोगे स्टैक ले लो, आप बोलोगे ये ले लो वो ले लो। लिंक लिस्ट is all about playing with the pointers. Maybe one of the questions could be like, multiple क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, जैसे 1 2 3 4 है, 5 6 क्वेश्चन कुड बी ऐसे। और इसको प्रिंट करो 1 3 5 2 4 6, ऐसे चलाइए, तो ऐसे भी कर लोगे आप। इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग विद द पॉइंटर्स। मूव इट लाइक दिस, देन स्टार्ट फ्रॉम हियर। I hope you are getting my point. So all the assignments are like this only, and it will be good if you solve all of those assignments. हमने बताइए किसी, हाँ बोलिए। कितने कितने किए हैं, क्योंकि अभी 2 दिन से हमने स्ट्रिंग ही किया है, तो एक बार चेक कर ले सर कितना हुआ है हमारा। कोई बात नहीं, आगे कर लेना, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप 2 दिन से थोड़ा और भी लिंक लिस्ट भी कर चुके होंगे। स्ट्रिंग्स में कैसा लग रहा है, कितने कंफर्टेबल हो? ठीक है, एक एक स्टैक थोड़ा सा शुरू करते हैं। स्टैक की वीडियोस देखी क्या? नहीं सर, हमने लिंक लिस्ट में सिर्फ वो जो मीडियम लेवल और हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं किए हुए, कोई बात बाकी नहीं, असाइनमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है। फिर मीडियम और हाई लेवल का बस ये है कि आप उसमें थोड़ा एक एक दिन में मीडियम वाली करते रहो, जब जब आपको टाइम मिले। एक्सपेक्टेशन आपसे वो है। ओके। हार्ड लेवल में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इवेंचुअली वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं ये बोल रहा था, आप सबने स्टैक की वीडियोस देखी क्या? स्टार्ट किया था बट पूरा तो नहीं देखा। अच्छा, अभी बाकी जॉय मान स्टार्ट ही नहीं किया? नहीं, मेरा बस एक वीडियो स्टार्ट किया, बस 5 मिनट देखाऊंगा शायद बस। पसंद नहीं आया क्या स्टैक? नहीं, वीकेंड था। तो कैसे कंप्लीट करें स्टैक को, बताइए आप, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तो आपकी रिकर्जन पे है। ट्यूसडे ना रिकर्जन है ना? हाँ, तो बताइए कैसे करेंगे आप? सर हमने लास्ट लेक्चर में आपको पूछा था कि हम स्ट्रिंग स्टार्ट करें या स्टैक स्टार्ट करें। आपने स्ट्रिंग स्टार्ट करो, तो हमने स्ट्रिंग स्टार्ट किया। अरे मुझे क्या पता था कि आपको स्ट्रिंग इतना पसंद आ जाएगा, स्ट्रिंग ही हो गए। नहीं सर, उसमें बहुत 8 या 10 असाइनमेंट्स है उसके अंदर। तो वीडियो तो देख लेते स्टैक के, बस मेरे को थोड़ा सा डिस्कस करना था यहाँ पे। सर आप कि थोड़ा stack- थोड़ा ओवरऑल थोड़ा कुछ बताइए, हम लोग समझ जाएंगे। स्टैक तो आप थोड़ा नहीं स्टैक, हाँ बताओ आप, स्टैक क्या होता होगा? लीफो। हाँ लीफो, ये तो आप ही बता दोगे जितना मुझे बताना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, हम्म। जैसे आपकी की ये हो गई। प्लेट्स रखते हो ना शादी में, चेयर्स। हाँ, शादी में प्लेट्स और चेयर्स। चेयर्स। ओके, अच्छा, हाँ फंस गए वहां पे। ओके, तो ये है। लेकिन ये बताइए स्टैक को आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? वही मैं भी सोच रहा था। आई मीन अरे में आप कर रहे थे, आई मीन उस क्लास में। हाँ हाँ, वो आपने क्यू की पहली क्लास अटेंड करी थी ना? अच्छी बात है फिर। हाँ बताइए स्टैक में आप कैसे करोगे? स्टैक में कुछ ऑपरेशन होते हैं, पुश
पॉप। पॉप एक होता है, पीक करके भी होता है। हाँ, पीक ये- मतलब टॉप एलिमेंट दे दो। हाँ एक टॉप होता है, टॉप ये बताता है आपका कहाँ पर हो आप। मतलब अगर आपके 6 एलिमेंट्स हैं तो ये बता देगा कि आप 5वें एलिमेंट पर हो, है ना, एरे से अगर यूज कर रहे हो। एक और होता है साइज। साइज तो पता ही होगा, साइज मतलब 6 एलिमेंट है, 6 बता दो। तो ये हाँ। ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के अंदर। हाँ अब आप मेरे को बताइए कि आप ये इम्प्लीमेंट करो कैसे करोगे स्टैक। यूजिंग लिंक लिस्ट और यूजिंग ये एरे। ये तो आप बताओ ना। अच्छा दोनों यूज कर सकते हैं ऐसे तो। हाँ, क्यू में क्या यूज कर सकते हैं, याद है क्यू या भूल गए? क्यू में तो हम लोग को लिंक लिस्ट ही करना है, वो भी सर्कुलर लिंक लिस्ट या फिर डबल लिंक लिस्ट। हाँ तो वो ठीक है, चलिए वो आपको याद है। स्टैक में बताइए क्या करते, क्या क्या लगता है आपको? स्टैक में सिर्फ हमको स्टार्टिंग वाले फर्स्ट एलिमेंट चेंज करना है, तो हम सिर्फ एरे का इंडेक्स आगे बढ़ा के हम सीधा पॉप कर सकते हैं एलिमेंट को। करो। अच्छा ये आ गए हाँ, आपके एलिमेंट अच्छा यस यस, याद आया मेरे को। बेसिकली हम लोग को इसमें जो भी करना है, एडिशन इंसर्शन दोनों एंडिंग में ही है। हाँ हाँ, और एरे का एंडिंग का एडिशन इंसर्शन इज ऑर्डर ऑफ 1। बताइए, स्टार्ट कराइए मेरे को। ओके। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट से 0 से किया ऐड। जीरो अच्छा, नीचे रहेगा ना? हाँ 0 नीचे रहेगा। क्या नीचे रहेगा? जीरो। 0। हाँ हाँ। हाँ तो 0 पुश करेंगे पहले क्या एरे में, करेंगे? पुश करेंगे। कहाँ पे पुश करूँ? एरे में? यहाँ या वहाँ, कहाँ? नीचे, सबसे नीचे। यहाँ पुश करूँ? कर 0 दिया। चल, यस। 5 साइज का एरे है मेरा। चलो 7 का ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना। हाँ ओके, अब क्या करूँ? फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब अगर पॉप करना है तो फिफ्थ एलिमेंट को उड़ाना है। अगर हम लोग लिंक लिस्ट रहता है ये, तो हम लोग को पूरा एन नोड्स क्रॉस करके फिर लास्ट एलिमेंट में पहुंचते हैं। अच्छा, अगर हम लोग टॉप यूज नहीं कर रहे तो, अगर टॉप यूज कर रहे तो वो बात अलग है, तुरंत ही मिल जाएगा। हाँ। तो लिंक लिस्ट ये नहीं, स्टैक से तो टॉप हम यूज करने से भी हम लोग का एन घूमना पड़ेगा, क्योंकि टॉप है किसी कहाँ? टॉप आपने टॉप कुछ बताया ही नहीं मुझे। टॉप जैसे ही हम डालते जाएंगे टॉप ऊपर ऊपर मूव होते जाएगा। कहाँ? ओके, टॉप प्लस प्लस करते जाएंगे। कहाँ है टॉप अभी? 5 पे। टॉप 5 है। ये रहा टॉप। अच्छा, आप बताइए क्या करूँ? पिक अब करेंगे तो 5 रिटर्न करेंगे, पॉप करेंगे तो 5 हट जाएगा और टॉप 4 में चला जाएगा। ओके, ठीक है। लास्ट। यही बोल रहे हो ना? हाँ यही तो था। चलिए पहले मुझे बताइए कि शू से आपने टॉप नहीं बताया कहाँ है। ऐसे ले लेता हूँ मैं। एरे है ये, उल्ट एरे वर्टिकल है, ठीक है, लेकिन एरे ही है। अब हाँ बताइए टॉप कहाँ है? बॉटम में। कहाँ? 0 या कहाँ? टॉप -1 होता है ना। -1? हाँ अभी फर्स्ट एलिमेंट डालेंगे तो टॉप को 0 करेंगे, टॉप उसको ऐसे पॉइंट बढ़ा करेगा। बढ़ा के ऊपर लेते जाएंगे। अभी -1 पे है ना? हाँ। हाँ हाँ ठीक है, तो 0 डाला तो ये 0 पे आ गया। हम्म। हाँ 1 पे, 2 पे, 3 पे। अब आपको अगर 5 पॉप करना है तो क्या क्या करोगे आप? टॉप को माइनस माइनस। हाँ ठीक, इंडेक्स को माइनस करते हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए, ये तो सही है, आसान लग रहा है। पुश पॉप का वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बस बता दीजिए, यही है इम्प्लीमेंट करना है, और क्या है? अरे में तो ऑर्डर ऑफ 1, लिंक लिस्ट में तो अरे लिंक लिस्ट नहीं ना, लिंक लिस्ट पढ़ने तो दो पहले। हाँ पुश बताओ कितना हुआ अभी? ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगा क्योंकि एक्सेस कर सकते हैं हम पॉप कहीं। पॉप विल आल्सो बी ऑर्डर ऑफ 1। है ना, कोई इशू तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अब जॉय लिंक लिस्ट बहुत देर से बोल रहे थे, लिंक लिस्ट में बताइए क्या करूं? लिंक लिस्ट नहीं यूज करेंगे इसके लिए। नहीं यूज करेंगे? डेफिनेटली नहीं। अरे क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि लाइक लिंक लिस्ट में हम लोग अगर टॉप एलिमेंट यूज करते भी है तो भी पुश एंड पॉप का हमारा ऑर्डर ऑफ एन आएगा, क्योंकि हम बताइए लोग कैसे आ रहा लास्ट है? एलिमेंट। हाँ pardon? कैसे आ रहा है? हाउ इट इज कैसे? ऑर्डर? क्योंकि अगर हम लोग लास्ट एलिमेंट को निकालेंगे तो हाँ, टॉप को जो है हम लोग को पीछे लाना पड़ेगा। पीछे लाने का कोई जरिया नहीं है, पूरा लिंक लिस्ट को फिर से घुमाना है।
अच्छा, अगर हम लोग मान डबल लिंक लिस्ट यूज करेंगे तब पीछे आ सकता है तब तो शायद। मानस पूजा, आपका आपका व्यू क्या है इसमें? अरे यूज कर सकते हैं लिंक लिस्ट? आई थिंक वी कैन। हाँ 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 कर सकते हैं, इसमें भी ऑर्डर कैसे? फॉर्म आएगा, क्योंकि अगर हेड पे ऐड करना है, हेड पे निकालना है। Yes. वही एग्जैक्टली। अब बताइए क्या करूं? अगर पुश करेंगे तो जीरो के बगल में एक, लाइक इस तरफ लेफ्ट साइड में एक और नोड बनेगा एंड दैट विल बी ऐसे? हेड। हाँ तो ऐसे बन गया फिर, है ना? ऑर्डर फॉर्म। यस। हेड ये रहा, हाँ ये इसको टॉप बोल दो, हेड बोलो या टॉप बोलो, हाँ। हो गया ना? तो लिंक लिस्ट, तो बताइए स्टैक को यूज करने के लिए विच इज बेटर, स्टैक और लिंक लिस्ट? सॉरी, एरे या लिंक लिस्ट में एरे और लिंक्ड अरे और लिंक लिस्ट, हाँ हाँ। साइज अगर डायनामिक है तो स्टैक, अगर साइज फिक्स्ड है तो एरे। साइज तो पता ही होता है पहले। दोनों का टाइम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगा ना? हाँ हाँ, सेम रहेगा। कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। तो मतलब दोनों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ दोनों साइड। तो ये याद रखना है आपको, stack can be implemented using array as well as linked list. Queue can be implemented using linked list only due to some issue, due to several issues. हाँ शायद जॉय ने बोला था कि लिंक लिस्ट सर्कुलर होनी चाहिए, कुछ ऐसा बोला था ना? हाँ। हाँ डबल लिंक लिस्ट होना चाहिए। क्यों इम्प्लीमेंट करने के लिए? डबल लिंक लिस्ट था कि हाँ डबल लिंक लिस्ट ही था क्यों इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर हमको ऑर्डर वो फॉर्म चाहिए तो। याद क्यों कर रहे हो? आप सोचो ना इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इसे। डेटा स्ट्रक्चर्स में ज्यादा याद मत रखो, है ना? हाँ दिमाग को फ्रेश रखना, वरना फिर हो जाएगा, वरना फिर टेढ़े मेढ़े आंसर आएंगे। नहीं मेरे को बस वही याद नहीं आ रहा है, आई मीन एग्जैक्ट याद क्या रीजन। करना है? आपने बोला इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सरप्राइज हुआ था आपने बोला इसलिए। बताइए क्या करना होता है लिंक लिस्ट में? ये इंसर्ट करो 0 1 2 3 4 5। इंसर्ट एंड पे करेंगे एंड डिलीट फ्रंट से करेंगे। तो इसमें क्या, कहाँ पे क्या तो अगर प्रॉब्लम है? अगर सिंगल लिंक लिस्ट रहता तो कोई ना कोई एक ऑपरेशन या फिर पुश का या फिर पॉप का हमको क्यों भाई, ऑर्डर। इसको टेल ले लो ना, टेल ले लो ना इसको। हाँ वो भी चलेगा। हाँ टेल लेने से भी, क्योंकि हाँ, अगर हम लोग को टेल को फिर 4 में कन्वर्ट करना है किस तो पे हमको कन्वर्ट करना है automatically, टेल को? अगर टेल से हम लोग पॉप कर रहे हैं अरे एलिमेंट। टेल से पॉप करोगे क्यों, लेकिन क्यू क्यू में में क्यों करेगा? पहले, इसलिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आए पहले सोचो पॉप में क्या आंसर आएगा। पॉप में आएगा आंसर 0। पुश अगर 6 करना है तो पुश कहाँ पर होगा? 5 के बाद 6 इंसर्ट होगा, है ना? ये सोचो पहले। फ्रंट अगर मेरे को करना है, फ्रंट बोलते हैं इसको, यस अगर पहला एलिमेंट निकालना है 0 आंसर होगा इसका। पॉप को बोलते हैं डी क्यू, पुश को बोलते हैं एन क्यू। क्यू। तो बताइए इसमें क्या इशू है? लिंक लिस्ट में तो हेड एंड टेल ये दोनों रहने से ही डबल लिंक लिस्ट इज अ रॉन्ग आंसर आई गेस। नहीं, डबल लिंक लिस्ट में तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डबल लिंक लिस्ट का यूज क्यों है यहाँ पे, जब सिंगल से हो जा रहा है आपका काम? हाँ सिंगल से हो रहा है। देखो डबल लिंक लिस्ट से तो आप दुनिया पलट सकते हो, अगर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा ना, डबल लिंक लिस्ट को सॉल्व कर देगी। लेकिन why to use doubly linked list? Have you ever created doubly linked list? हाँ बनाया हूँ। तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है इधर उधर मैनेज करना, उसमें रिवर्स जैसे करना है उसको। दो दो पॉइंटर मैनेज करना पड़ता है। साइज भी बढ़ जाता है तो फालतू। पहले मैं सिंगल लिंक लिस्ट बना के उसके बाद फिर डबल लिंक लिस्ट बना, बेसिकली एक एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया था तो इसलिए ऐसे करने टाइम पे मुझे थोड़ा सा आसान हुआ उसको उसको अंडरस्टैंड करना। नहीं, एक बार अगर आप कर लो फिर तो आसान ही लगेगा, लेकिन इस पे एनीवेज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ी रही है। अगर कुछ नहीं पढ़ना तो, अगर आपको आसान भी लग रहा है तो नहीं। वैसे मेरे से पूछा जाए तो मेरे को रिवर्स लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट इजी लगता है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस प्रीवियस को नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट को प्रीवियस करना है ना? कभी कभी क्वेश्चन घर में आपको ट्राई करना है, रिवर्स डबल लिंक लिस्ट कर लोगे या नहीं? हाँ वो तो बहुत आसान हो गया ना, हर नोड का बस वो करना रहेगा।
करना, आगे फिर बढ़ो। एक बार ट्राई करना। तो ठीक है, अभी हम इस पे स्टैक और क्यू पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और स्टार्टिंग और एंडिंग में लाइक हेड एंड टेल्स को भी करना पड़ेगा। हाँ वो सब करना, या तो इनिशियलाइज में ही आप कह दो टेल ये हो गया, या वैसे एंड हाँ में कह दो, वो आप पे है, आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस करा कि स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरे एज वेल एज लिंक्ड लिस्ट, नॉट एन इशू, बोथ आर ओवन। yes yes I know that the stack is what static size is limited, but whenever you are creating a stack, you know that okay, I want to store these number of elements, so size is not an issue always. Some of the people say that insertion and deletion is tough in case of arrays. ऐसा आंसर तो नहीं दोगे ना, आपने दिया नहीं मैं या एक बार भूल दे गए चुका ये वाला, क्या? ये वाला एक बार दे चुका आंसर। दे चुके हो क्या? अच्छा। So some of the people straight away say that in the interviews that stack should be implemented using linked list because insertion and deletion are costlier in array. ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी, तो फिर वहीं पे नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला या नहीं? इंसर्शन डिलीशन कहाँ टफ है भाई एरे में? एरे में इंसर्शन डिलीशन तो तब टफ है जब आप 0 को डिलीट करोगे, 2 को डिलीट करोगे। हाँ तो आप डिलीट ही 5 को कर रहे हो, इंसर्ट ही यहाँ पे कर रहे हो, तो क्या इशू है? कुछ नहीं है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है वो इंसर्शन एंड डिलीशन एट द एंड इज नॉट एन इशू इन केस ऑफ एरेज, rather it's O of 1, right? Is it clear? हाँ Okay, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं स्टैक पे। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक एरे दे रखा है और आपको इसका आउटपुट ऐसा देना है कि जो भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आ रहा है ना वो देना है। मतलब 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 10 है, तो 10 आंसर इसका। 10 के बाद 16 है ना, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 16 है, 16 के बाद 20 है, 20 के बाद कुछ भी नहीं है तो -1, क्योंकि 27 से ग्रेटर है ना, इसलिए और यहाँ पे -1। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ बताइए क्या क्या लग रहा है? एक तो हिंट मैंने पहले ही दे दी, अगर सुना हो आपने तो। क्वेश्चन में ये लिखा, सुन लिया है, मैंने तो सुन लिया स्टैक। अच्छा सुन लिया ना। कभी कभी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो इंटरव्यूअर से बोल दो यार थोड़ी हिंट दे दो, हिंट दे देगा वो। लेकिन हिंट देने के बाद फिर वो परफेक्ट आंसर एक्सपेक्ट करेगा। तो बेसिकली स्टैक में हम लोग पुश करेंगे ओके और जो भी वैल्यू है उसको करंट वैल्यू करके एक वेरिएबल में सेव करेंगे, और जैसे ही एक और पुश होगा तो उस समय जो ऑलरेडी करंट वैल्यू है उसे चेक करेंगे। अगर करंट वैल्यू से ज्यादा है तो पॉप कर देंगे। 4 को इंसर्ट कर दिया, अब क्या करूं? अब पुश करते वक्त एक चेक करो, एक चेक लगाओ कि अगर ये वैल्यू 4 लाइक ऑलरेडी करंट वैल्यू दैट इज 4 से ज्यादा है कि नहीं। अभी तो सबसे पहले तो 4 ही इंसर्ट करा ना, किससे चेक करूं? हाँ वही, उसको करंट वैल्यू में एक सेव कर दिया तो दैट इज द करंट वैल्यू बेसिकली। अच्छा तो करंट वैल्यू से तो क्वेश्चन वही था ना कि लाइक अगर एक के बाद दूसरे में जा रहे तो अगर वो ज्यादा नंबर है तो सबसे पहले वो आना चाहिए ऐसे कर। और नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट जो भी आ रहा है राइट में उसको बताओ। टॉप इंक्रीज हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा इंक्रीज? टॉप पॉप। टॉप टॉप। अच्छा 4 को डाल दिया स्टैक में जॉय के कहने पे, यही हाँ करूं क्या? अब फिर क्या करूं? सो टॉप को इंक्रीज किया टॉप को it's fine। इंक्रीज किया। तो हाँ अरे टॉप छोड़ो, स्टैक स्टैक बना हुआ है आपका, अब और बताओ।
अच्छा टॉप को इंक्रीज कर दूं, ये कह रहे हो टॉप को 1 0 कर दूं ये? नहीं, अभी क्या? अभी टॉप 1 में आ गया ना, मतलब 4 इंसर्ट हो गया तो टॉप 1 में आ गया है, 0 में आ गया? अभी तो आपने मेरे को बोला था टॉप को -1 से इनिशियलाइज करो। टॉप 0 पे आया, यानी कि 4 को पॉइंट कर रहा है अभी वो। हाँ हाँ, भूल गए? सॉरी। चलिए एनीवेज आप बताइए आगे क्या करूं। सो टॉप आ गया, और अभी जब फिर से अगर हम पुश कर रहे हैं तो टॉप का वैल्यू से पुश पुश जो भी एलिमेंट हो रहा है उसका वैल्यू को कंपेयर करेंगे। एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे जिसमें कि ग्रेटर देन, अगर पुश का एलिमेंट इज ग्रेटर देन टॉप का एलिमेंट, देन पुश का एलिमेंट को पॉप कर दो या फिर समझ। नहीं है तो क्या करूं? अच्छा नहीं, हम लोग तो इसको सेव भी करना पड़ेगा ना, और इसमें does it have to be a stack? ये अप्रोच से मेरे को n स्क्वायर क्यों लग रहा है अपना कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा? क्यों? क्योंकि हम लोग 4 का लेंगे फिर ट्रेवर्स करेंगे जब तक वैल्यू नहीं मिला। तो 2 लूप लगाओगे? हाँ, तो ये अप्रोच से मेरे को वही लग रहा है कि ये अगर अप्रोच स्टैक को यूज करके? अभी स्टैक में हमने 4 पुश किया, नाउ वी हैव टू Okay. कंपेयर 4 का मतलब अपने स्टैक का टॉप टिल वी गेट अ हायर नंबर, राइट? ओके, टिल वी गेट द हायर नंबर। हाँ, तो ये तो चलते ही जाएगा, अगर एंड में हुआ तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी फिर वो हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले आपने स्टैक में क्या डाला है? 4 डाला हुआ है ना, फिर हाँ 10 आया, हाँ 10 को 4 से सही है, कंपेयर कर। मगर बस वही है कि हाँ n का तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा से घबराओ मत, चलो आंसर तो बता दो। सेम थिंग, हम लोग पुश करेंगे, जो भी एलिमेंट पुश हो जाएगा उसको हम लोग उसका वैल्यू से हम लोग नेक्स्ट जो भी है उसको कंपेयर करें। जितने इसको भी नेक्स्ट ऐड वो, हो रहे हैं, अभी 4 डाल दिया मैंने, इसके बाद क्या करूं सो ये बताओ। 4 को एक और वेरिएबल बनाओ, एक इंटीजर बनाओ जिसमें 4 वैल्यू सेव करो। कि अच्छा, फिर हाँ, सो अब इसमें नेक्स्ट एलिमेंट पुश करेंगे। किसमें? हाँ, स्टैक में। अच्छा, तो कर जो भी दिया। पुश हो रहा है, तो अब इस वैल्यू को हम लोग जो ऑलरेडी करंट वैल्यू है से चेक करेंगे। ओके, 10 से कैसे? 4 से? हाँ, तो अभी ये टॉप एलिमेंट जो भी है उसको करंट का वैल्यू से हम चेक करेंगे। सो 10 इज ग्रेटर, तो अगर 10 इज ग्रेटर देन पॉप करो, किसको पॉप करूं? 10 को पॉप करो। 10 को पुश, अच्छा कर दिया, फिर? उसके बाद अच्छा, पॉप करने की जरूरत नहीं है, आउटपुट में 10 को क्यों पॉप किया? आउटपुट हाँ, में 10 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। क्या करूं? 10 को पॉप नहीं करना। अब नेक्स्ट एलिमेंट 10 हो गया है तो आई मीन इसको कोड कर सकूंगा शायद। उनको आइडिया तो आ गया है कि लाइक उसका जब तक हम लोग को बड़ा एलिमेंट नहीं मिलता तब तक हमको पुश करना है, जैसे ही बड़ा एलिमेंट मिला पॉप करो और नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओ, लाइक उसका बगल वाला एरे का नेक्स्ट एलिमेंट जो भी है उस पे जाओ। सो एक 4 को for डाल दिया स्टैक में, ठीक है। हाँ मैंने 10 को विजिट करा, उस टाइम पे मैंने स्टैक को पॉप करा। हाँ, और 10 को इंसर्ट किया। नहीं, चेक करा पहले कि 10 ग्रेटर है 4 से, है तो प्रिंट करा दिया वहीं हाँ पे। हाँ, हाँ 10 तो प्रिंट हो गया है ना, या नहीं? हाँ फिर हो गया 10 को प्रिंट। डाल दिया स्टैक में, 10 को स्टैक में डाल दिया। हाँ, अब आगे फिर से बढ़ो, 3 को डाल, 3 को चेक करा, नहीं, 3 नहीं को है, चेक किया, 3 अगर उससे बड़ा नहीं है तो पुश कर दो। हाँ, कर दिया। फिर नेक्स्ट को पुश करो, फिर 16। नेक्स्ट 16 को पुश करा, हाँ, 16 जो नहीं है वो 3, 16 को नहीं, 6 को पुश करेंगे और 6 16 कहाँ के से आया? अच्छा कंपैरेटिव। अच्छा, 6 भी था, रुकिए रुकिए, हाँ हाँ 6 भी था ना, 6 को हाँ हमने पुश करा। हाँ, उसके बाद 16 वाला जो था वो वाला प्रिंट हो जाएगा। 16 अभी नहीं ना, 3 का तो 6 आएगा ना आंसर। नहीं 10 का 16 आएगा ना, बट
हाँ हाँ अभी आएंगे ना उस पे। 10 का उसमें है ना, हम लोग 10 पे चेक कर रहे 10 हैं। वाला ही चेक कर रहे हैं ना। तो वो इंटीजर जो मैं लगाने बोला था उसी को सेव एक करेगा वो। सेकंड, एक सेकंड, अभी 10 प्रिंट हो चुका है ना, इतने इतने से हैप्पी हो या नहीं हो? हाँ 10 प्रिंट हुआ। ओके। और मेरे स्टैक में ये पड़े हुए हैं, इतने तक सेटिस्फाइड हो या नहीं हो? किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं। 10 के साथ 16 तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, वो हाँ हाँ 16 अभी पे करूंगा। 10 तो प्रिंट हो गया, इतने से तो सेटिस्फाइड हो, अपने नोट पे लिख लो 10 प्रिंट हो गया, मतलब इतने तक तो हमने कुछ अचीव करा ना लाइफ में। आगे का आगे देखते हैं। अब आगे 6 आया है ना, हाँ 6 ग्रेटर देन 3 है, हाँ। तो अब क्या करें? और आगे जाएंगे। और आगे नहीं हमको बट वो 10 में 10 से कंपेयर करना है ना, तो आई गेस 10 को अलग से वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें दो तीन तरीके हैं। या तो ये पे आप एक एरे ले लीजिए, एरे के जिस जिस उसमें आ रहा है इंडेक्स पे, मतलब हाँ कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट इंडेक्स में आया था तो इसको 10 में आपने इनिशियलाइज करा 0 को। हाँ हाँ ये वो जो है ये इंडेक्स स्टोर कर सकते हैं। एरे, ये जो है 6, ये एरे 2 में 6 एसोसिएट हुआ। हाँ एक और तरीका क्या है, मैप ले लीजिए। मैप क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, शायद आपने सुना हो कभी। हाँ तो ये 4 के साथ 10 एसोसिएट हुआ था, ठीक है। हाँ 3 के साथ 6 एसोसिएट हुआ, है ना। क्यों आप क्लियर हुआ? 6 देखिए ग्रेटर है इससे, हाँ लेकिन 6 जो है 10 से ग्रेटर नहीं है। तो 3 को मैं रिमूव कर दूं या नहीं कर दूं? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है। हाँ 3 को रिमूव करना पड़ेगा। 3 और 4 दोनों को रिमूव करना पड़ेगा, जो जो आपने मैप में डाल दिया वो सब आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? हाँ ओके। वरना आप स्मॉलर उसको वैल्यू। ओवरराइड कर दोगे। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ 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 जो भी स्मॉलर वैल्यूज हैं उनको पॉप करना अभी पड़ेगा। सब आपके स्टैक में सिर्फ ये पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है ना। हाँ क्लियर है या नहीं है? अब हाँ 16 आया, अब 16 आया, 16 6 से भी ग्रेटर है, 10 से भी। तो हम्म 6 के साथ भी 16 एसोसिएट हुआ, 10 के साथ भी 16 एसोसिएट हुआ, हम्म और यहाँ पे 16 आ गया। स्टैक में सिर्फ 16 है। नहीं हो रहा क्लियर तो बताइए। अगला आया 20, 20 ग्रेटर है 16 से, 16 के साथ 20 एसोसिएट हो गया, और 20 स्टैक में आ गया। फिर हाँ। आपके 20 चला, 7 चला, जिनके साथ कुछ एसोसिएट नहीं हुआ, तो जिनके साथ कुछ एसोसिएट नहीं हुआ उसके साथ -1 लगा देना है। तो ओके। बताइए अप्रोच कितना क्लियर हुआ? हाँ तो भी 20 तो सबके साथ पेयर हो सकता है ना, 4 के साथ भी, 3 लेकिन के आपको साथ भी। हाँ, अगर आपके साथ क्वेश्चन ये होता कि राइट साइड में सबसे लार्जेस्ट लगाओ, तो आपकी बात सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है जो भी नेक्स्ट लार्जेस्ट मिल रहा है ना राइट हम्म में, उसको प्रिंट करो। हम्म, नहीं समझ में आया? हाँ देखिए हाँ हाँ हाँ। 10 के राइट में लार्जेस्ट जो 10 से बड़ा है वो 16 है, 20 हम्म बाद में आ रहा है, तो 16 हम्म प्रिंट करिए, हम्म है ना। लेकिन यही क्वेश्चन जो है आपने जो जैसी बात कही, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट लार्जेस्ट जो भी आ रहा है वो प्रिंट करो, तो फिर से आप स्टैक यूज करोगे, तो सबके साथ 20 एसोसिएट हो जाएगा, है ना। हाँ हम्म वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है एक्चुअली, ये वाला। हम्म। तो अप्रोच ये है। अब इसको थोड़ा सा आप नोटबुक में करना। अप्रोच क्लियर हुई ना आपको? हाँ हाँ। इसमें मेरे को एक डाउट था, बोलिए। इसमें हम लोग बीच में से वैल्यूज निकाल रहे थे ना, बीच में से मतलब? स्टैक का जब भी 4 और 3 था। नहीं हमें ना देखिए, जिसके साथ भी आपने एसोसिएट कर दिया ना, जैसे 4 है, अब 10 जब आया था ना, हाँ 10 4 के साथ एसोसिएट हो गया, तो आपको 4 यहाँ से अच्छा पॉप कर देना है और सिर्फ वो 10 रखना हाँ हाँ फिर ठीक है, है ना। वही। हाँ वो मोमेंट पे ही कर देना है, जैसे अगर ही नहीं हम। करोगे, तो फिर तो प्रॉब्लम है और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ वही मैं बोला, इसलिए क्योंकि हमने कैसे पहले 3 और 4 को ऐसे वो रख। सिर्फ मैंने बताने के लिए करा था कि हाँ देखिए अगर आप रखोगे तो नुकसान ये है, इसलिए आप हाँ हटाओ। हाँ हाँ नहीं, अगर हम लोग को 4 तो सबसे पहले हम लोग ऐड किए हाँ और हाँ। उसको पहले निकाल दे रहे, तो ये तो क्यों बन गया ना। नहीं कैसे बन गया? 4 को आपने 10 से कंपेयर करा, अभी 10 को डाला नहीं है क्यू में, स्टैक में, ओके। हाँ है तो ना। मतलब टॉप इज ऑन 4। हाँ
समझ रहे हो ना? अगर ये भी होते, ऐसे भी होते, तो आपने 4 3 2 के साथ एसोसिएट करते, फिर 10 को डालते। समझ में हाँ आया? हाँ, ये तो है। पहले पहले पॉप करना है फिर पुश करना है। तो इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला? आपको अगर कभी भी वापस आना है ना, वापस, जैसे हमें 3 पे वापस आना था एसोसिएट करने को 6, या 10 पे 16 एसोसिएट करना है, तो बैक ट्रैकिंग काइंड ऑफ करना है, तो आपको स्टैक यूज करना होगा। ये मेरा पर्पस था समझाने का, मेरा पर्पस ये नहीं था आपको एग्जांपल। ये देखिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन था ना, ये मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यूज क्वेश्चन में से एक है, तो इसलिए मैंने सोचा ये भी पर्पस पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्पस मेन ये था, आपको कभी भी वापस आना है तो आपको स्टैक यूज करना है, और कोई तरीका नहीं है। वापस आने का क्या मतलब है कि आप आगे बढ़ गए हो, यहाँ पे पहुंच गए हो 16 पे, अब आपको 10 पे एसोसिएट करना है 16 को, इसको वापस आना कहते हैं। समझ में आया क्या? इसको बैक ट्रैकिंग इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, दो हम ट्री में अच्छे से स्टडी करेंगे इसे। एक होता है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। शायद आपने, आप में से, आपका बैकग्राउंड क्या है, कंप्यूटर साइंस है क्या? हाँ मेरा है। अच्छा, तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल आपने कभी सुना होगा शायद डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हुए, कि हाँ इसमें रूट, लेफ्ट और राइट ऐसे प्रिंट करते हैं। हाँ ज्यादा इसमें इसमें ज्यादा मतलब, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसमें ज्यादा मतलब ये मत करना। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसका आंसर ये होता है, मतलब 1 2 4 5 3 6 7। मतलब सबसे पहले आप रूट प्रिंट करोगे, फिर लेफ्ट, फिर राइट। यस हाँ तो इसमें देखिए, इसको देखो, 1 रूट है, फिर लेफ्ट है। अब लेकिन जब आप 2 पे गए तो यहाँ पे भी पहले आओगे, तो इसका भी लेफ्ट 4 है, तो इसलिए पहले 2 के बाद 4 आया, फिर 5 आया, फिर ये वाली साइड अब देखोगे 3 6 7। मेरा पर्पस क्या है समझाने का? देखिए, अगर आप इसमें ट्रेवर्स करते जा रहे हो, अब आपको 3 में वापस आना है। वापस वापस आने का सिर्फ एक तरीका है, वो है स्टैक। जब भी आपको आपका क्वेश्चन, अब आप, आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है स्टैक पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है क्या ये, और इसको चलो पढ़ भी रहे हैं, तो इंटरव्यू में मैं यूज कैसे करूं, मेरे को यूज करना नहीं आता स्टैक। तो मेरा बस यही है समझाने का मतलब, कि आपको कभी भी प्रॉब्लम ऐसी दिख रही हो कि आपको वापस आना है किसी जगह, आपको बैक ट्रैकिंग करनी है, देन यू नीड टू यूज स्टैक। अदरवाइज इफ यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, दैट मीन्स फॉरवर्ड लाइक आपको 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट करना होता है, मतलब ऐसे ऐसे, तो आप क्यों यूज करो, है ना? ये पॉइंट है बस समझाने का। सेकंड कौन सी जगह है जहां पे आपका स्टैक यूज होगा? अभी आप रिकर्जन पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर पे, पढ़ के आना है ट्यूसडे में, वरना लेक्चर थोड़ा टफ हो जाएगा। रिकर्जन अंदर स्टैक यूज करता है। रिकर्जन का मतलब होता है एक फंक्शन अपने आप को खुद कॉल कर रहा है। जैसे कार्तिक कॉलिंग कार्तिक थी ना मूवी, एक देखी हाँ होगी शायद, वो खुद को ही कॉल करता रहता है। हाँ तो स्टैक भी ऐसा ही है, ये खुद को कॉल करता है, तो खुद को ये ऐसे कॉल करते हैं। हाँ फिबोनाची सीरीज में है ना शायद से, हाँ फैक्टोरियल फिबोनाची, फैक्टोरियल हाँ। हाँ दोनों के दोनों फिबोनाची, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसे कॉल कर रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब ये, फंक्शन 3 ने जो इंट n वैल्यू है, इसको n-1 कर देते हैं, ठीक है? ये वापस खुद को कॉल करे जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे। इफ n इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 1, है ना? ऐसे करके कुछ लिख दिया ये, तो ये रिटर्न 1 कर रहा है, ये भी रिटर्न 1 कर रहा है, ये भी रिटर्न 1 कर रहा है, ये भी रिटर्न 1। तो ये स्टैक में स्टोर्ड है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन 0 तो सबसे लास्ट में कॉल हुआ, लेकिन ये रिटर्न सबसे पहले होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। और आप सबने नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो देखे होंगे, आपके कोड में भर भर के आते होंगे, है ना? सब वो भी स्टैक से आते हैं। ओके हाँ तो अगर आपको कभी भी रिकर्जन को आइटरेशन में कन्वर्ट करना है, रिकर्जन को आइटरेशन में कन्वर्ट करना, आइटरेशन का मतलब होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, ठीक है? हाँ आइटरेटिव वे, रिकर्जन मतलब फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है ये, तो आपको स्टैक यूज करना होगा। तो ये दो तरीके हैं जहां पे आप स्टैक यूज करते हैं। राइट? एनी डाउट? इटरेशन में स्टैक यूज करते हैं, ओके। रिकर्जन को स्टैक, रिकर्जन को आपको उसमें कन्वर्ट करना है आइटरेशन में। हम्म। तो तो फॉर लूप का, बेसिकली
इंटरनली मेमोरी में स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है, यही बता किसमें रहा किसमें है। मेमोरी में उसका कैसे चल रहा है, कैसे वो पता, कैसे वो उसको रीड करता है, वो स्टैक के जैसा रीड करता है, एक जो रिकर्सिव। फंक्शन कॉल्स वगैरह होती है रिकर्जन में, हाँ आपने फंक्शन कॉल शायद पढ़ी होंगी मेमोरी एलोकेशन के लेक्चर में, सी प्लस प्लस में, वो भी स्टैक यूज हाँ करता है। हाँ जैसे आपका ये लूप चल रहा है ना, फंक्शन एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, फंक्शन 3 फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 फिर कॉल कर रहा है, फिर फंक्शन 0 कॉल कर रहा है, ये एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कॉल होगा, ये हाँ रिटर्न होगा, फिर ये कॉल होगा, ये रिटर्न होगा, फिर ये कॉल होगा, ये समझ रिटर्न होगा, गया। फिर ये कॉल। ये पॉइंट है समझाने का, है ना। Yes. जैसे आपकी कार है, कार इंजन को कॉल कर रही है, कार स्टार्ट कैसे हुई, इंजन जो है वो, बताओ यार थोड़ा हेल्प करो मेरी कार में, इंजन के अलावा और कुछ याद नहीं आ रहा। इसको डोर्स क्या, डोर्स फोर्स, डोर हाँ डोर यार, डोर को कॉल, मतलब मैं सोच रहा था आप थोड़ा ऐसा ऐसे बताओगे ना कि जो चलता हो, ओके बना दो तो स्टीयरिंग क्या इंजन, है। इंजन से पिस्टन, पिस्टन से हाँ स्टीयरिंग हाँ नहीं, वो इंजन ठीक से है, जिसको पिस्टन, पिस्टन जिसको से कार में पेट्रोल। थोड़ा, ठीक है कंप्यूटर में बता दो यार सबसे पहले। ठीक है आप समझ गए ना मेरा पॉइंट, मतलब क्या है हाँ समझाने का। समझ गए, समझ गए। जैसे इंटरनेट चलता है, स्टेयरिंग हाँ हाँ वही समझ इंटरनेट गए। जैसे चलता है ना, आई होप हाँ आप सबको पता हो इंटरनेट कैसे चलता है। डीएनएस कनेक्ट हो रहे हैं, फिर एक सर्वर से कॉल हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये सब भी स्टैक के थ्रू ही चलता है। हाँ तो स्टैक बहुत यूजफुल है, क्यू से बहुत ज्यादा यूजफुल है। वैसे तो दोनों इक्वली यूजफुल है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा स्टैक का यूज ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो हम, आई होप आपको क्लियर हो गया हो, स्टैक में कोई डाउट तो नहीं। नहीं तो नहीं है कुछ, नहीं है। बाकी क्वेश्चंस करना। तो ये बताइए, हाँ आप सबने सब स्ट्रिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है। स्ट्रिंग्स में हाँ वही मैंने एक ही क्वेश्चन बोला अटेम्प्ट करने को लास्ट, हाँ हुआ क्या। हाँ वो स्ट्रिंग्स का 2 असाइनमेंट्स थे। हाँ आप दो सब स्ट्रिंग वाले थे, आप कौन सा वाला पूछ रहे हैं? दो थे क्या। हाँ एक एक में था काउंट बताना था। हाँ एक में था कि कितने बन सकते हैं, और एक था कि कौन से पोजीशन पे बन रहे हैं। हाँ ये वाला एक हुआ ये क्या, हाँ हाँ ये हुआ है। कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई। मेरा ओ ऑफ एन है। वो ऑफ एन, मेरा कमाल ऑफ कर दिया यार आपने। n into m है मेरा। अभी सबसे पहले हम मानस का ही जितना देखते हैं, ऑफ एन बोल दिया है। देख देखो मेरे को तो ओ ऑफ एन ही लगा था। लगा क्या था यार, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बता नहीं पा रहे हो। अरे ओ ऑफ एन ही था, हमने डिस्कस किया था क्योंकि ये क्वेश्चन ये अच्छा हम तीनों ने नहीं, जितने हमने ये डिस्कस किया था कि हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये है ना आपका आंसर। हाँ हाँ यही है। अच्छा, मेन में क्यों लिख देते हो यार सब कुछ, ऑब्जेक्ट अरे वो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शन कॉल करो, आदत डालो इसको। हाँ 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 वो सॉरी। देखो सही आंसर लिख के आओगे तब भी निकाल देगा वो। समझ रहे हो ना, रिवर्स इंग्लिश उसने हाँ बोली और मेन में ही लिख के आ गए आप। सही लिखा है वो पढ़ेगा ही नहीं, सही लिखी है नहीं, वो कौन इंटरव्यूअर। चलाए, चलाओ। आपका नाम ही लिख देते हैं, नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्या लगता है क्या आंसर आएगा। सिर्फ पोजीशन आनी चाहिए 0 या तो 1। क्या लिखा है। अरे वो सर कैपिटल स्मॉल वाला आई थिंक ये अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, इसमें तो मेरी गलती है। अब फाउंड सब स्ट्रिंग हाँ एट 0, अच्छा अच्छा अच्छा, एट पोजीशन 0, अच्छा ठीक है, ये तो सही लग रहा है। ये मैंने किया था चेक बहुत सारे केसेस के साथ आई थिंक। अच्छा, हाँ जैसे मैंने 4-5 बार मेरा नाम ही लिखा है ऐसे कोई भी रैंडम स्ट्रिंग में। अब अब क्या ये नहीं मिला क्या इसे। नहीं नहीं मिला है।
क्यों, क्या हुआ, नहीं है क्या इसके अंदर? लास्ट वाला केस आई गेस नहीं मिल रहा उसको, एकदम एंड वाले केस। बट हाँ मिलना चाहिए उसको चेक काउंटर पे। मैंने एस लेंथ का कुछ गलत किया है क्या? ठीक है देखता हूँ मैं। क्या लगता है कहाँ गलती है? वही अभी वापस याद करूं कि ये कैसे किया था। आज 8-10 क्वेश्चंस किए हैं। इफ अच्छा। चेक काउंटर सब लेंथ प्लस ये किया था, पीछे वाला चेक करो एंड बढ़ जाए तो रिजल्ट काउंटर बढ़ा दो। हाँ ऐसे ही किया था मैंने। एज केस आएगी, मैं एक एज केस भूल गया एंड वाला। क्या मिल जाए तो? हाँ अभी मैं कैसे कर रहा था, मैंने सबस्ट्रिंग स्टोर करके रखा था अलग से। हम्म तो सबस्ट्रिंग का अगर मेरे पास स्टार्ट आ रहा है 0, हम्म हम्म। मैं वो चेक काउंटर को ये 1 करता ठीक है। हूँ। हाँ तो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर मेरे को मिल गया, तो मैंने ओके। चेक वाला काउंटर आगे बढ़ाया एंड मेरा अभी से मेरा माइनस था, तो अभी वो एम से ए की तरफ चेक करना चाहिए नेक्स्ट वाले इसमें। हम्म। तो वो नेक्स्ट वाले इटरेशन में चेक करता है कि ये ए है क्या, अगर ए है तो वापस काउंटर को बढ़ाता है। हम्म। फिर वो ए को बढ़ा के वापस फिर एन ए एस, अगर समझो बीच में कहीं पे ब्रेक हो गया, ये एम ए एन ए डाला है आपने, एस वाला नहीं हुआ, तो मैं फिर चेक करता हूँ कि एम है क्या वो। ओके। अगर एम है तो वापस यहाँ से काउंटर 1 से स्टार्ट करके हम चेक कर सकते हैं आगे। तो ये बताओ आप, आई जो है आपका मूव करता ही जा रहा है, हाँ तो एक सेकेंड, ए वाला भी कैसे चल रहा है आपका? मानस है ना? हाँ थोड़ा सा नाम के साथ कुछ करते हैं, मानस मानस। हाँ गलत आया था। आएगा उसमें, मैंने ये वाला चेक किया था। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ब्रेक हो गया कहीं पे तो वो इस पे जाएगा। कोई बात नहीं, इसमें क्या लगता है क्या आएगा? इट्स नॉट एक्चुअली ट्रूली रॉन्ग, इसका आना चाहिए मेरे से। आप डालिए सबस्ट्रिंग डालो ना, देखते हैं। अरे मैं एक सेकेंड एक चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, अच्छा हाँ हाँ क्योंकि आप सॉरी। बैक ट्रैक नहीं कर रहे हो। हाँ आपका मैं तो आपका तो वैसे ही नॉर्मल वेज में भी नहीं नहीं चलने कर वाला। रहा। बताइए यार कोई केस, क्या होगा? एम ए एम। हाँ एम ए एस हाँ करके, बस फिर। हाँ एम ए एस समथिंग समथिंग करके डाल के एम ए एस को सर्च करो। बैक ट्रैक नहीं हो ये रहा है तो आ ना। जाएगा, एम ए एस तो आ जाएगा ना? नहीं, ये एक सही बता देगा इसका इनका कोड, ये सही बता देगा। हाँ वो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है मैं वो देख रहा हूँ। हमारा जो एकदम एंड वाले में था उसमें नहीं आ रहा था ना, ए बहुत ज्यादा था जब। हाँ ओके। नहीं, इसमें भी नहीं होगा। एक तो यही वाला केस है वो, और दो चार बी के लिए भी, मतलब इसके लिए तो चलेगा ही नहीं है। हाँ ये क्यों नहीं चल रहा है, मैं को वो नहीं समझ रहा। आप बताओ ना, इसमें तो आप मूव पीछे कर ही कहाँ रहे हो? हाँ सीधा आगे चेक करते जा रहा है क्या? अच्छा हम्म। नहीं नहीं, ये इसलिए ब्रेक हो रहा है क्योंकि सेम सेम कैरेक्टर्स हैं तो वो आगे चलते जा रहा है काउंटर अपना। हाँ वही है, हाँ इसकी। सेम सेम कैरेक्टर्स हैं इसलिए होते जा रहा है वो आगे बढ़ते जा रहा है काउंटर मेरा, एंड वो चेक नहीं कर पा रहा मेरे को लग रहा है। तो ओ एन में तो नहीं हो सकता नहीं? हाँ क्योंकि वो हाँ अगर सेम सेम अभी आपसे कोई भी स्ट्रिंग डालो उसमें सब स्ट्रिंग ऐसे डालो जिसमें से 3-4 रिपीटेड हो। बताओ क्या डालूं? अभी वापस से मानस। हाँ
और माइनस में क्या करूं, मैन माइनस? और ऐसे ए ऐसे 4-5 बार कर सकते हैं। और फिर अभी वापस NAS लिख दो। अब क्या करूं, अभी सर्च क्या मानस करूं? अभी मानस डाल के देखो। इसमें तो वैसे ही नहीं है ना, आएगा, आना भी नहीं चाहिए ना, उसमें तो था। डबल ए डाल के देखो, सर्च करके देखो डबल ए। वो तो आएगा, आएगा वो हाँ आएगा। आएगा। प्रॉब्लम क्या है, आपका भी, आप दोनों का भी देख लेंगे इसमें अभी सॉल्यूशन, कि जैसे ओके। आपके में अगर मैं मानस पूछ रहा हूं तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर कर रहे हैं तो सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। हाँ जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया हमने कैरेक्टर, और इसमें हम सर्च करना चाह रहे हैं मे बी AAT, हाँ तो AAT इसमें चला, तो ये तो नहीं चला, इससे कंपेयर नहीं हुआ। अब नहीं। आपने ए कंपेयर करने की कोशिश करी, हाँ इससे भी नहीं चला। हाँ फिर यहाँ पे आप AAT करोगे तो चल जाएगा। लेकिन सपोज मैं एक ये यहां से हटा दूं, अभी अब चलेगा या नहीं चलेगा, क्या बेसिकली लगता एक है? को स्किप कर दे रहा है वो। वो हाँ, जो जो चेक हो गया उसको स्किप कर दे रहा है बेसिकली, उसको काउंट में नहीं ले रहा है। हम्म, एक मिनट। AAT। हाँ आप एक बार देखो, तो जब तक मैं जॉय और हाँ पूजा का हाँ, भी देखता हूँ। मैं देखता हूँ। आपका कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है जॉय? M into N, हाँ हाँ, सॉरी N into M वही। N इंटू एम ना, तो हाँ आपका सही होगा। आप क्या कर रहे हो, अगर मिल नहीं रहा तो वापस आई को वहीं पे ले जा रहे हो? पीछे मैं भी मेन में डाल दिया पूरा, तो मैंने नहीं डाल। डालोगे ना यार, ऐसे नहीं करना आपसे। हाँ चाहे चाहे डबल मेहनत करनी पड़े, कम असाइनमेंट करो, लेकिन ऐसे मत करो। हाँ हाँ सॉरी हाँ। क्योंकि मेरे अभी आप फंक्शन कॉल करोगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, वहां सब में आपको प्रॉब्लम होगी, तो अच्छा है अभी से सीख लो। अगर आपको नहीं मिला तो क्या कर रहे हो, कहीं दिखाओ। ये आपने चलाया, मिलता गया तो आपने लूप चला लिया, ओके अच्छा ये तो ऐसे चल रहा है। बेसिकली एक टर्म पकड़ रहा है उधर से चेक कर रहा है, फिर एक नेक्स्ट टर्म पकड़ रहा है उधर चेक कर रहा है। तो एन M इज द नंबर ऑफ जिसको हमको फाइंड करना है, जिस टर्म को हमको फाइंड करना है उसको। एट पोजीशन 3, तो पोजीशन 3 ये है क्या, क्या 4 पे मिला है 3? इंडेक्स है बेसिकली वो, अच्छा, इंडेक्स तो इंडेक्स इंडेक्स। लिखो, है ना। हाँ ठीक है। पूजा आपका कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है? मैंने तो ज्यादातर स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस यूज करके बनाया, तो आई डोंट नो। मतलब आपका भी इधर मेन में, हाँ क्या तो वो ON में ही हो गया आंसर। हाँ। और आपने तो ये यूज कर लिया अंदर, यही तो जानना था हमें अंदर क्या कर रहे हैं। हम्म। नहीं ऐसे नहीं करना पूजा, ओके। क्लियर हो ना, क्यों हाँ नहीं हाँ करना। हाँ, फॉर वगैरह वो सब लगा के करना, ठीक नहीं है। फॉर की बात नहीं है, देखिए अंदर ना ये क्या कर रहा है ये हमें जानना है। देखिए हम्म ये कोर्सेज जो है ये तो NIIT भी कराते हैं ना, हम्म और बाकी सब भी कराते हैं, और हम्म। एट बेटर आपको मतलब वो, और कम फीस में भी कराते हैं। उसमें ओके। और आप में क्या डिफरेंस है, उसमें और आप में क्या डिफरेंस हो जाएगा, आपको पता होगा हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है क्या जब क्या। आपका कोर्स खत्म होगा। अभी हम्म। क्या क्या चल रहा है अंदर किसको क्या पता है, यस। फाइन है ना। हम्म। तो ये इशू है। ओके ये ठीक है। तो इसको आप, यही तो हमें इम्प्लीमेंट करना है फाइंड को। हाँ। देखिए हम स्टैक और क्यू डिस्कस कर रहे हैं अभी, आप तो सीधे यहाँ लिखो हैश इंक्लूड, एक सेकेंड इसे रीलोड करने दो। आप सीधे यहाँ कॉपी पेस्ट करके स्टैक लिखो। अब आपको C++ का मिल गया स्टैक, हम्म ठीक है। अब तो आपको जो करना है करो इस स्टैक के साथ, हम्म इंसर्ट पुश वगैरह जो भी करना है। हम्म हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टैक, क्योंकि आपको पता रहे कि ये कैसे चल रहा है।
करेक्ट। जैसे इसका नाम दे दिया ना कुछ भी। ये इसमें वो चलता नहीं क्या, जैसे वी डॉट पुश करोगे तो पुश हो जाएगा, वी डॉट पॉप करोगे तो पॉप चल जाएगा। है ना शायद, सॉरी, वो जो हेडर फाइल होता है stack डॉट एच होता है क्या, इसके लिए नहीं नहीं आया? नहीं, ये ऐसे ही चलता है जैसे है इस iOS। वो स्टैक जब आपकी फाइल बनाते हो ना आप अपनी फाइल, हाँ हाँ, तो उसको लिखते हैं स्टैक डॉट एच। ओके अगर आप एसटीएल है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ऑफ द सी प्लस प्लस, इसमें ओके आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। आप ऐसे क्यू यूज कर सकते हो, स्टैक यूज कर सकते हो। मेरा पर्पस क्या है ये समझाने का कि ये सारे के सारे पहले से बना रखे हैं, स्टिल हम आपको बोल रहे हैं कि एक एक खुद इंप्लीमेंट करो, करेक्ट। because industry wants you to understand that what is the complexity and I mean आपने फंक्शन कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए है। ठीक है, ओके, तो मैं वैसे आप इसको रीअटेम्प्ट करना। ओके ठीक है। तो हाँ मुझे इसमें मिल गया प्रॉब्लम। क्या ये अभी एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल, हाँ समझो आप 7-8 ए लिखो फिर टी लिख दो। बस यही है क्या, और जगह नहीं होगा कभी ये? हाँ मैं बता, बट एक्सप्लेन करने के लिए आई कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बेटर अभी इसमें। हाँ हाँ तो अभी आई स्टार्ट। पहले मैंने फर्स्ट वाला ए चेक किया, सेटिस्फाई हो गया, फिर सेकंड वाला चेक किया, सेटिस्फाई हो गया, थर्ड वाला चेक किया, सेटिस्फाई हो गया, फिर फोर्थ वाले पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मैंने सिर्फ वो फोर्थ वाला चेक किया है कि मैं यहाँ से ए स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे जो है ना एल्स इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू सबस्ट्रिंग ऑफ 0 नीचे, हम्म। तो मैंने पहले वाले जो ए थे उसके पहले वो उड़ा दिए सब, चेक नहीं किए कि वहां से मैं सबस्ट्रिंग स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं। इसका एक इश्यू रह सकता है ना, आई मीन ऐसे लाइक अगर ए के बदले फॉर एग्जांपल एस ए रिपीट हो रहा है, एस ए ऐसे 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 एंडिंग में टी, और दो बताइए एस क्या ऐसे ऐसे। एस ए एस ए एस ए एंडिंग में टी। हाँ तो अब इसमें हम लोग को चेक करना है ऐसे ऐसे टी को चेक करना। हाँ तो ये इसमें भी वही प्रॉब्लम ऐसे रिपीट T, होगा। 2 बार ऐसे आएगा, 2 बार ऐसे। हाँ इसमें भी सेम प्रॉब्लम रिपीट होगा ये वाला। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, जो आपको पता ही चल गया है कि हाँ देखिए आप ये इन तीन से कंपेयर करा, फिर आपको टी मिला तो आपने इग्नोर यहाँ मार से दिया। ही स्टार्ट अब किया आप, हुआ। अब आप फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गए, हाँ हाँ हाँ। है ना, आप तीन गए, अब फिर से नहीं मिला। पूजा आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं। हाँ हाँ, आ रहा है। अब इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा, मिला ही नहीं। हाँ लेकिन मानस ने क्या, जॉय ने क्या करा था, जॉय ने क्या करा, पहले इन तीनों को चेक करा, उन्होंने भी करा, लेकिन जब उन्हें नहीं मिला ना तो वो वापस यहाँ आ गए। हाँ हाँ हाँ, ये वाला ओ ऑफ एन स्क्वायर वाला अप्रोच तो पता था, वांटेड टू ओ ऑफ ट्राई। एन स्क्वायर का है, ओ क्योंकि ऑफ एन एन, इंटू एम, मतलब एक कम होगा ना, ओ ऑफ एन इंटू एम आएगा ना ये हाँ वाला। ओ ऑफ एन इंटू एम है। ठीक है, तो ये भी ज्यादा ही ये है ना। तो इसका मतलब आप गलत कर दो। मैंने ये एज केस नहीं सोचा, मैंने एग्जांपल्स वाले देखे, मैंने रन करके देखा, मतलब चलो चल रहा है। तो अगर इतना सिंपल होता तो मैं एक ही प्रॉब्लम बोली थी आपको करने को, तो वरना मैं बोलता ही क्यों। नहीं नहीं, ये ओ ऑफ एन स्क्वायर वाला तो मैं कर देता। आई वांटेड टू ट्राई कि ओ ऑफ एन में क्या क्या कर सकते हैं। नहीं जब मानस हो नहीं पाता हर किसी से, वो आप कह रहे हो अभी ओ ऑफ एन स्क्वायर वाला मैं कर देता, आप करते तो मैं अप्रिशिएट करता उसे। जॉय ने ही डिड अ वंडरफुल जॉब। काफी इंटरव्यूअर्स तो आपसे बोलते ही नहीं ओ ऑफ एन में करने को एक्चुअली यार। हम लोग का कन्वर्सेशन हुआ था उस पे कि लाइक मैं हम लोग डिस्कस किए थे कि मैं बोला कि ऑलरेडी ओ फैन एन इंटू एम तो आ रहा है, उससे कम नहीं आ रहा है, तो गलत कर मानस दो, ट्राई करते हैं, वो फैन आ रहा था मेरे को, उसको ट्राई कर, मेरे पास एक आइडिया। तो गलत कर दोगे क्या? अच्छा ये बताइए कि एक गलत अप्रोच विच इज ऑप्टिमाइज्ड इज बेटर देन द ब्रूट फोर्स वन। आपके हिसाब से क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग क्या है? काफी डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर को उसके हाथ में दे देते हैं, इसलिए आपको इतना पैकेज वगैरह दिया जाता है, काफी कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है, आप खुद सोचो। राइट, क्लियर हो रहा है ना? हाँ हाँ आपको ये सोचना होगा, ये आपको कोई बोलेगा नहीं। बिग कंपनीज गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको ही सारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है। आपको बोल देंगे यार एक वॉलेट बना के दे दो मुझे, वॉलेट। अब नेगेटिव अमाउंट रखना है या नहीं रखना है, ये सब आपका डिसीजन है। एक्सपेक्ट करेंगे आपको नेगेटिव में अमाउंट ना रखो। वॉलेट में 100 रुपए आपने पेमेंट पेमेंट अगर 99.99 की करानी है तो क्या करोगे? ये सब डिसीजन मेकिंग आपकी होती है। हाँ हाँ। तो
पॉइंट ये है कि ठीक है, एक अप्रोच है इसमें जो हम कर सकते हैं सॉल्व करने में। तो देखिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O इंटू एन एम आ रही है, आई मीन O ये आ रहा है आंसर, है ना? वर्स्ट केस में क्यों आ रहा है ये क्लियर है या मैं बताऊं? नहीं समझा। सबको क्लियर है ना? पूजा को भी क्लियर है ना ये? हाँ हाँ। तो एक हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग से पहले सब स्ट्रिंग ले लेते हैं। सब स्ट्रिंग है 1 1 1 2, ठीक है ना? अब मैं एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। टेबल में थोड़ा सा मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए अगर मेरे को ये 1 1 1 1 1 1 1 1 2 मिला, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है? मैं अप्रोच जो डिस्कस कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब मैंने ये 3 1 टेस्ट कर लिए तो मेरे को वापस यहां ना जाना पड़े, मैं आगे ही बढ़ पाऊं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक टेबल बनाऊंगा सबसे पहले, जिसमें मैं थोड़ा पैटर्न जानने की कोशिश करूंगा। पैटर्न क्या है इस सब स्ट्रिंग का पैटर्न, स्ट्रिंग का पैटर्न नहीं, सब स्ट्रिंग का। तो देखिए ये जो है ये पहली बार आया तो इसको मैं 0 लिख दे रहा हूँ, लेकिन देखिए 1 पहले भी आ चुका है तो इसको 1 कर रहा हूँ। अब थोड़ा और ध्यान से सुनना, देखिए 1 1 पहले भी आ चुके हैं, ठीक है, 1 1 पहले भी आ चुके हैं, तो ये 2 कर रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 1 1 पहले आ चुके हैं। अब 2 जो है वो पहले कभी नहीं आया तो 0। और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। इसका एक एग्जांपल है ए, इसका एग्जांपल इसका बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 आएगा क्योंकि ए कभी नहीं आया, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। लेकिन ये ए जो है ये पहले आ चुका है तो यहाँ पे ये 1 आएगा। ए बी पहले आ चुका है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ये ई है, ई सी नहीं है, ई है, तो ये 0 रहेगा क्योंकि ई जो है वो पहले नहीं आया है। पहले मतलब प्रीफिक्स में आना चाहिए। हाँ हाँ। फिर से इसका देखते हैं, ये फिर से 1 आएगा, ये फिर से 2, ये फिर से 0। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली वो कोई इशू वाली बात नहीं है, ये थोड़े से ज्यादा करने पे क्लियर होता है। इसका बनाने की कोशिश करते हैं सब स्ट्रिंग का बना रहा हूं मैं। ये 0 है क्योंकि इसका प्रीफिक्स कुछ है ही नहीं। इसका प्रीफिक्स देखिए है एक, 1 आया। ए पहले भी आ चुका है, ए तो ये 2 हुआ। ए पहले भी आ चुका है, ठीक है ना, ए पहले भी आ चुका है तो 3। ए पहले भी आ चुका है 4। तो ये नंबर्स हम लोग कैसे सेव कर रहे हैं बेसिकली? ये टेबल बना रहा हूं मैं, इसके करस्पॉन्डिंग स्टोर कर रहा हूं मैं। हाँ ओके, हाँ वैसे ही किया हमने भी। हाँ, 26 इसके बट यहाँ फिर बी का 2 क्यों आ रहा है? बी का तो वही देखिए बी का ये ए बी आ चुका है इसलिए, है ना। ओके। अगर यहाँ सी होता पूजा तो ए यहाँ 3 आता, ठीक है, क्योंकि ए बी सी पहले भी आ चुका है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। नहीं वो वहाँ 0 0 यहाँ पे 1 2 कैसे हो गया? कोई बात नहीं, अब ये कोई इसमें टाइम लगता है, शायद देखने के बाद भी ना आए, मतलब अभी मगर मेरे को लोग एक में नहीं आ रहा है, ए बी ऑलरेडी आया है करके हम सेव कैसे कर रहे हैं उसको? यहाँ पे जे चलाना एक, यहाँ पे आई चलाना, मतलब Okay. प्रोग्राम जब लिखोगे, और अगर आई जे से मैच कर रहा है तो 1 से इंक्रीज कर दिया, ओके ठीक है। उस पर भी आता हूँ एक सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन पे। ये तो 0 हुआ, ये भी 0 हुआ क्योंकि बी कभी नहीं आया, सी भी कभी नहीं आया। प्रीफिक्स से चेक कर रहा हूं मैं हमेशा, ठीक है। डी का भी देखिए प्रीफिक्स नहीं आया, ई भी नहीं आया, एफ भी नहीं आया, सब 0 है। ए जो है प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो जे यहाँ पर है आपका, आई यहाँ पर है, आई और जे दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आई दोनों को आगे बढ़ा दो, इसको 1 सेट कर दो, ये यहाँ आई आ गया, यहाँ पे जे आ गया। ओके देखो जे और आई फिर से मैच कर रहे हैं, 2 आ गया। जे और आई फिर से मैच कर रहे हैं, 3 आया। जे और आई फिर से मैच कर रहे हैं, 4 आया। फिर से मैच कर रहे हैं, 5 6। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपका जे यहाँ पर था, आई यहाँ पर था। अब आपका जे अब आपका जे यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, फिर से मैच कर रहे हैं तो 7 हुआ है, हाँ ये 8 हुआ, ये 9 हुआ। अभी नहीं होगा। अब नहीं होगा, तो अब आपका जे वापस यहाँ पर आ गया। ये ध्यान से समझ में आया?
हाँ आप फिर से मैच करेगा तो ये फिर से 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी तक? हाँ हुआ। इंडेक्स वो करना तो आया बट बट हमेशा मैं प्रीफिक्स मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको क्लियर हो जाएगा अभी। ओके मुझे बताइए कितना, थोड़ा सा 50% अगर हो गया है तो भी आगे बढ़ने को तैयार हो जाऊंगा मैं। 50% भी नहीं हुआ तो फिर से बताऊंगा एक दो और। नहीं 50% तो क्लियर हो गया। ठीक है, एक एक दो एग्जांपल लेते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो एग्जांपल वही वाला ले लेते हैं, ये वाला है ना, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग जो है एस एस बोल रहा हूँ इसको, ये आपका ए टी है। बताओ इसका क्या होगा, यहाँ क्या लिखूं? यहाँ पे 0 यहाँ पे, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 0। ठीक है। और ये पोजीशन ऐसे मैंने मार्क कर दी। हाँ अच्छा, इसमें भी 2 काउंटर से रन करेंगे और देखेंगे सेम 4 पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या। अब मैं हर पोजीशन पे ये कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जे जो है मेरा 0 है, आई यहाँ पर है। हाँ जे यहाँ पे भी रख सकते हो लेकिन उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। जैसे टॉप को -1 रखा था ना, वही रीजन है। हाँ आई को मैंने J+1 से कंपेयर करा, मिल रहा है ना? हाँ बताइए। आई को मैंने J+1 से कंपेयर कर रहा हूँ, हाँ मिल रहा है ना? तो मैं हाँ दोनों को आगे बढ़ा दूंगा। अब मिल रहा है ना अभी भी? हाँ अब मिल रहा है। अभी नहीं, अभी कहाँ। नेक्स्ट क्यों? वाले पे बोलेगा, हाँ। मिल रहा है ना हाँ 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 या नहीं? अब बताओ, अब नहीं मिल रहा ना शायद। नहीं मिल रहा है। तो अब मैं आई यहीं पे रखूंगा और जे को मूव करूंगा 2 पोजीशन पे, क्योंकि मैंने 2 यहाँ पे स्टोर करा है। ठीक है, समझ में आया हम्म, या हाँ नहीं? मेरा जे वापस यहाँ पे आ गया। अब मैं कंपेयर करूंगा, मिल रहा है ना? तो आई हाँ को आगे बढ़ा दो, जे को यहाँ पे। अब नहीं मिल रहा, अब नहीं मिल रहा ना, तो हम्म, वापस कहाँ पे ले जाऊंगा मैं? 2 पे। ये 2 पे बोल रहा है इसलिए आई को वहीं रखूंगा मैं। अब मिल रहा है तो इसको भी आगे बढ़ाया। अब नहीं मिल रहा है तो जे को वापस पीछे करो। अब फिर से मिल रहा है, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे। अब तो ये भी मिल रहा है। हम्म, बस हो गया, इसका मतलब सब स्ट्रिंग है। अब इसकी, अब ये मैंने इतना सारा बता के टाइम वेस्ट करा, इसका फायदा क्या हुआ? मैं आई को कभी भी पीछे मूव नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है? तो जे को करो। तो आई को अगर मैं पीछे मूव नहीं कर रहा हूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ एन हुई ना, हाँ हम्म, और इसको बनाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एम। तो हाँ फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन प्लस ओ एम। हाँ यस और नो? वाई मैंने इसमें टाइम वेस्ट करा इतना सारा, ये है रीजन। ओके और इस एल्गोरिथम का नाम भी है केएमपी एल्गोरिथम है, या केएमपी सर्च पैटर्न भी बोलते हैं इसे, केएमपी एल्गोरिथम। तो इसका नाम थोड़ा खतरनाक सा है, फुल केएमपी बोलते हैं, नूथ मॉरिस एंड प्रैट, ओके okay. ये नाम है इसका। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है? तीन आई लोग होप। मिलकर बना है क्या? सॉरी, क्या? 3 लोग मिलकर इस एल्गोरिदम को बनाए। अब ये लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने सॉल्व तो कर दिया ओएन में। देखिए, पैटर्न मैचिंग के और भी एल्गोरिथम है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी एक याद कर लो। ऐसे मत करना 5 याद कर लिए एग्जाम में, मतलब इंटरव्यू में पूछ रहे एक याद नहीं आ रहा, और वो ओएनएम वाला भी याद नहीं आ रहा, फिर वो वाला आप करके आ रहे हो जो मानस ने किया। हाँ फिर वो हाँ बोल रहा है चलो भाई आप जाओ, कल आपको कल बताएंगे रिजल्ट के बारे में। कल कभी आएगा ही नहीं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पैटर्न एक और, ए बी बताओ भाई इसका क्या होगा? पैटर्न फॉर्म कराइए। ये सब 0 स्ट्रिंग है, यहाँ, 0 0 यहाँ, 1 यहाँ। 1 1 2 कैसे हुआ यहाँ? 2 2 2 2 2 हुआ, ये डाउट तो नहीं है ना? नहीं नहीं डाउट है तो बताओ। 0 हाँ। अब तक 100% हो जाना चाहिए था वो 50%। एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, और हमेशा याद रखना सब स्ट्रिंग का बनाते हैं वो।
ABC, थोड़ा सा मुश्किल सा ले लेते हैं ना, जिससे थोड़ा सा मजा आए। ठीक है, इस वाले का भी अगर आप माइनस चला के देखोगे तो आपका नहीं चलेगा उसमें। हाँ हाँ ये J है, ये I है, और I को J+1 से कंपेयर करना है, करते हैं। मिल रहा है ना अभी? तो J यहाँ पे आया, I यहाँ पे आया, अभी भी मिल रहा है। J यहाँ पे आया, I यहाँ पे आया, अभी भी मिल रहा है। तो J यहाँ पे आया, I यहाँ पे आया, अभी भी मिल रहा है। J आया और I यहाँ पे, अब नहीं मिल रहा। हाँ। अब क्या करूं? अब J मैं पहले तो J को कहाँ पे मूव करूं? सेकंड पोजीशन। क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे मैंने पैटर्न फॉर्म करा है, इसलिए सेकंड पे मूव कर रहा हूँ। हाँ और I को मैंने हिलाया भी नहीं है। अब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, अभी भी नहीं मिल रहा। हाँ तो अब मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, अभी भी नहीं मिल रहा, तो मैं I को बढ़ा दूंगा। क्लियर हुआ ना? हाँ 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 अभी भी देखो, आप बोलोगे आप J को पीछे मूव कर रहे हो, मैं J को तो पीछे मूव कर रहा हूँ, लेकिन I को पीछे मूव नहीं करा है। और इसको तो मैं टेबल से सर्च कर रहा हूँ O1 में, हाँ टेबल बनी हुई है ना पहले ही। हाँ फिर से यहीं से शुरू कर जाओगे आप। J तो I से मिल रहा है, देखिए J+1 I से मिल रहा है, तो J को यहाँ पे, I को यहाँ पे, फिर से मिल रहा है। J को यहाँ पे, I को यहाँ पे, अब नहीं मिल रहा, फिर से 0 पे ले जाओ, और अभी भी नहीं मिल रहा, अब I को आगे बढ़ा दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट भी नहीं मिल रहा तो I को बढ़ाओ, अदरवाइज रुके रहो। अब फिर से चेक करते हैं, J मिल रहा है I से, तो आगे बढ़ा दो। अभी भी मिल रहा है, J को भी आगे बढ़ा दो, I को भी। अभी भी मिल रहा है, J को आगे बढ़ा दो, I को भी। अभी भी मिल रहा है, J को आगे बढ़ा दो, I को भी। अब इंटरेस्टिंग चीज आ गई। अब देखो, J अभी जो है B पे जाएगा, है ना? B पे जाएगा ना? हाँ ठीक है। अब देखो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा अभी भी, तो यहां जाएगा। अब सॉरी, J आपका यहाँ पर आया था, है ना? सॉरी, J जब यहाँ पे आया था, J यहाँ पे आ गया था ना B के साथ, बाद यहाँ पे, ठीक है, ये याद है? B4 पे थे ना? हाँ सी के बाद वाला जो ए बी आए थे। हाँ, मतलब यहाँ पे अब आ गए थे, B2 था ना? अब I J+1 से मिल रहा है ना? नहीं? नहीं समझा, कंफ्यूज हो गया। हाँ, वो मैंने J एक्स्ट्रा मूव कर दिया एक्चुअली। J मेरा यहाँ तक आ गया था, ठीक है, ये था। हाँ अब मेरा J जो है इससे नहीं मिल रहा है, हाँ बी है उधर। तो मेरा J आप कहाँ पे ले जाओगे? 2 पे। अब मिल रहा है ना? हाँ या नहीं क्लियर हुआ अभी भी? नहीं अभी मिल रहा है। तो J यहाँ पे आ गया, I यहाँ पे आ गया। अब फिर से मिल रहा है, तो J यहाँ पे आया, I यहाँ पे आया, अब फिर से मिल रहा है, तो मिल गया पैटर्न। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी? हाँ बट अभी हमारा अगर बहुत बड़ा पैटर्न हुआ तो हम जे को ऐसे मतलब बहुत रिपीट हो रहा है एंड जे को हम पीछे लेते जाएंगे राइट हम्म। हर बार। हाँ, तो वो भी लूप के अंदर डालेंगे कि वो टेबल से आप सर्च करोगे, while your this is not equal to 0। अच्छा तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगा उसका। फॉर के अंदर ये वाइल लूप जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये जो है ये बहुत ही कम होगा, ये जो है ये आपका देखो तो 2 से डिवाइड हो रहा है, या बहुत ही ज्यादा डिवाइड हो रहा है, अच्छा हाँ हाँ तो ये क्योंकि आप इसमें प्रीफिक्स स्टोर कर रहे हो, तो ये नेग्लिजिबल कंपेयर टू 1 ही है। हाँ 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 ओके। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n प्लस O ऑफ m आ जाती है। m मतलब पैटर्न फॉर्म करना, पैटर्न भी तो फॉर्म करोगे ना, ये हाँ टेबल, इसको O ऑफ m, और इसको फॉर्म करने का O ऑफ n। अब इसको प्रॉब्लम को थोड़ा सा नोटबुक में एक दो बार ट्राई करना, फिर आप बताना। जनरली क्या बोलते हैं वो आपसे कि इसको लिखने को नहीं बोलता कोई, क्योंकि लिखने का ना थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। आपसे बोलते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन दो जो O ऑफ n में आ जाए, बस ये पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में। ठीक है ना?
हाँ यार इसको दो चार बार ट्राई करना, फिर देखते हैं। हाँ तो ठीक है, वी आर डन फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकर्जन से शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट आपका सब कवर हो गया है, बस आपको असाइनमेंट थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। हम मेरे को एक और वो अप्रोच डिस्कस करना, स्टैक यूज करके हम सब स्ट्रिंग कैसे देख सकते हैं। आपको कोई अप्रोच दिखी क्या ऐसी? नहीं, मैं ऐसे सोच रहा था कि हमने से स्टैक में सारे पुश किए, हाँ फिर लास्ट वाला एलिमेंट हम चेक करेंगे उसमें, अच्छा, फिर नहीं, फिर वापस पॉप करेंगे, वापस पुश करना पड़ेगा, वापस बैक ट्रैकिंग वाला प्रॉब्लम आएगा उसमें। वही है। हाँ हाँ हाँ, सेम मेरा दिमाग उस पे ही चल रहा है अभी पुराने। नहीं कोई बात, ट्राई करना, क्या पता निकल भी आए और हाँ वो कोई सोल्यूशन। ठीक है ना, हाँ सोचते रहिए, अच्छी बात है। सोचने से क्या होता है कि कम से कम गलतियां पता चल जाती हैं जो हम रिपीट नहीं करें आगे। हाँ हाँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो हम एंड कर देते हैं। और ये तो ट्राई करेंगे फिर समझेगा आगे। अभी हम कौन से असाइनमेंट्स करें पहले वो सबसे पहले रिकर्जन पढ़ लेना, रिकर्जन। हाँ रिकर्जन और क्योंकि देखिए, असाइनमेंट से ज्यादा एक चीज है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर होने चाहिए। हाँ तो रिकर्जन में आप अप टू डेट रहें। देखिए, सबके दो दो तीन तीन असाइनमेंट कर लो, सबके लिंक लिस्ट क्यूज के, है ना, दो तीन। दैट विल बी सफिशिएंट। ओके हाँ दैट विल बी सफिशिएंट। ओके ठीक है, ठीक ठीक है। है, तो इससे रिकर्जन नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ते हैं। हाँ, रिकर्जन पढ़ लो, वरना नेक्स्ट क्लास में आप आओगे बोलोगे यार ये रिकर्जन कैसे रहा, हो कैसे रहा है। उसमें भी हम वही देखेंगे, लिंक लिस्ट का रिवर्सल देखेंगे रिकर्जन से, तो ओके देखेंगे कैसे हो रहा है ना। एंड वो अलग अलग मॉड्यूल था ना वो के एक ओके, और हाँ, अलग मॉड्यूल है वो। ठीक हाँ, है रिकर्जन हाँ अलग ठीक है, मॉड्यूल है। उसका तो सिर्फ स्टडी मटेरियल ही है, ठीक है। हाँ, हाँ उसका वो भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं कुछ कुछ सिंपल सिंपल से। नहीं, अभी तक हमारे लिए सिर्फ स्टडी मटेरियल अनलॉक हुए हैं। ओके ओके, ठीक है, हम्म, ठीक है। ओके देन, टेक केयर, गुड बाय। गुड नाइट। ओके। गुड नाइट।